So, good afternoon, viewers. And today is the 19th day of Career Pathshala, and soon we'll be joining Dr. Anuj Garg sir and our speaker. So, let's see. So, hi Shikha and welcome viewers to Career Pathshala and a warm Sunday evening to all people who are experiencing heavy monsoons in different parts, and in Bhopal the weather is quite cold. So today we have a very special session on making entrepreneurship spirit, not only for being a startup but also for being into jobs. So we will be very soon joining in by Appointee CEO, who is the founder of Appointee and is the CEO. About Appointee, it's a startup based out of Bhopal, and it is one of the most preferred choice in many IITs, NITs, and definitely a lot of premium engineering colleges. So, Shikha, hope Career Pathshala today is the 19th day. We will be just 10 days to come up with our final event finale, the conclusion. So, Also, we will be providing free employment assessment for students who are in the final year and a part of Career Pathshala, those who have registered. So just be there, wait, and there will be many more things coming in the next 10 days. We thank our viewers joining in from different parts of the country, especially from Bhopal, Jabalpur, and nearby cities of Madhya Pradesh. So we have Mr. Nimesh also joining in. So we take him in and welcome Nimesh and to Career Pathshala and आपका स्वागत है on Thank this platform CII Young Indians Career Pathshala. Nimesh is a founder CEO of Appointee, and probably I know him since my schoolhood days. So I don't want to keep that suspense. So he's one of the person whom I have been knowing and seeing the growth. And in the startup Pathshala also we tried to invite him, but lot of work pressures. But he was always there as a support system in lot of ideas we bring in for students on employability, on startups. So a warm welcome, Nimesh. Definitely, sorry that I mentioned that you are my friend. People will assume your age to be of mine, but definitely he's one of the youngest CEO, founder, and a celebrity among the startup ecosystem. Welcome, Nimesh. It's a proud privilege to host you at Career Pathshala. Shikha, I would like you to welcome on behalf of student fraternity. sure, sir. So, it's rightly said that entrepreneurship is about being to face failure, to manage failure, and to succeed after failing. So today it's a great honor and it's a great moment for me to bring before you a versatile personality in the entrepreneur sector, that is Mr. Nimesh Singh sir, founder and CEO appointee. Let's grow our career 10 times with entrepreneurial attitude with Nimesh sir. Welcome you sir and thank you so much for joining in. you, Anuj. Thank you, Shika. Thanks for So, calling me, young Anuj, sir. First of all, thanks, Nimesh. Sunday evening could be a possibility of having you. So we thought of catching you on Sunday. So for our viewers, we would like to know more about Appointee, and your journey and the journey of Appointee goes hand in hand. तो Appointee और आपकी क्या जर्नी रही है from your college days till now, because that journey gives a lot of experience and exposure to students to understand कि how a bootstrap company, मतलब when we talk about startups, we think about Bangalore, we think about Gurgaon, we think about Pune or Hyderabad, but not many people think about Bhopal. And I really like when I speak to INC 42 or your story, and they talk about, yeah, you are from Bhopal, there's a company called Appointee there. So it gives us proud that yes, we have some good startup ecosystems even in tier 2, tier 3 cities of the country. So we really would like to know your journey and about Appointee, Nimesh. okay.
So I'll start with my school days. So I did my schooling from Gujarat, and then I came to Ratlam for doing 11th and 12th, and then suddenly there were no colleges in Ratlam, so I had to come to Bhopal to do some kind of a course. So there is an institute called CNET here, and I came to CNET and then realized that the kind I thought they are offering BNet, they are offering BTech, and later on I realized that that's a just a part time kind of a course, and I have to do something else. And this was my passion towards computers, that I wanted to do something in computers rather than going for a traditional engineering course. But then I met you, and I started going in counseling with you, and then I realized that a lot of people are going there in college, and that's why I decided to take admission in a private college in Oriental, and then things started up. I learned a lot from the college. I had a lot of good friends in college, but I was not a very good student of mechanical. Just to tell you how good I am in mechanical, I can just tell you that whenever my car gets broke down, I have to call my brother and ask him कि भैया आ सकता है क्या, या कार पंचर हो गई है या कार खराब हो गई है, and he's an MBA. So एक mechanical engineer cannot fix a car, and an MBA can fix a car. It all depends on passion. So the problem was, I realized very early on that in mechanical में कुछ होना नहीं है. So I have to basically stick to what I loved, and I loved programming since 11th. I was very good into programming. I used to make softwares at that time. So after graduation, so in mechanical there were there were not a lot of companies like today, because there were no Anuj sir at that time, and we had no placement cell even in the college. So उस time होता क्या था कि there was just one company who came, and I was not eligible to sit in that company, and I was very much disappointed that I was not able to sit in that one company, because I knew that if I would have been into that company, at that point I believed कि अगर मैं उस company में बैठ जाता तो शायद मेरा career बहुत अच्छा हो जाता. Right. So, and I did my engineering 4.5 years, not 4 years. So 2001 mein, there was again a bubble burst. So 2001 there was no jobs, and even if there were jobs, they were not meant for people who have completed their graduation 4.5 years. So I feel lucky today. So my luck was favoring me. That's why I didn't get a job. So I started focusing on what I loved the most. I started working as a freelancer, because जो भी करते हो freelancer हो जाते हैं. So I also became freelancer, and I started working. I did a lot of projects for first 3-4 years in Bhopal. बहुत काम किया, बहुत सीखा, समझ में बहुत कुछ आया. लेकिन the challenge was, nobody in Bhopal, there was a bad debt of almost like, I mean, people were not paying. 10% एडवांस आप देंगे, लेकिन 90% किसी को नहीं चाहिए. उनको लगता है जब विंडोज 100 रुपए में CD में आता है, तो तुम 5,000 रुपए 10,000 रुपए किस चीज के मांग रहे हो. Right, so they never understood that part of the portion. But the good thing is, because people never paid here in this city, and I have been into this city for like 5-6 years, I realized, I always felt that I would be of no use in any other city, so I have to do something in this city only. So I then realized that if I can work for people in Bhopal, why can't I work for people in Mumbai or Bangalore, right, by staying here? So I thought, if I have to take projects, I'll take from them. And then later on, one thing clicked me, that if Mumbai or Bangalore, then why not US? Then we started taking projects from US. To my surprise, यहाँ पर जो 10,000 की वेबसाइट बनाते थे, उसमें लोग 2,000, 1,000, 2,000 रुपए देते थे. And in US, I used to charge like $2,000, और पूरे पैसे आते थे. So suddenly from 10,000 rupees to $2,000, one website, suddenly things changed. So I realized that the problem was that I was not into the right market, and things started coming up. But at that point I was only working alone. So the challenge was कि अब और लोगों को जोड़ना है. अब जब शुरू किया तो सब जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा कॉलेजेस में कैंपसेस वगैरह हो गए थे, कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता था, भोपाल में किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती थी, तो बहुत सारे लोग बाहर गए. Then we started, I started searching from people from people around me, and then I came across one guy who was into NIT. एक NIT course होता था, not in engineer, but he did not graduation, but kind of a certification course from NIT. तो उसने ज्वाइन किया. फिर उसके बाद एक ने इंजीनियरिंग खत्म कर ली थी, and then he was selling socks and अगरबत्तीज on the street. So इतना बुरा हाल था इंजीनियर्स का.
So he came in, he joined, and then there was one guy जो बैंगलोर जाके 2 साल तक पूरा घूम के आ गया और उसे कोई जॉब नहीं मिला, and then he realized कि यार चलो कुछ तो कहीं से start करते हैं. So these people joined. So I call them as I was a failure in my life. So I just formed a team, another bunch of 3-4 लोग और जोड़े और काम start किया. Soon we were making good money from US, and तब एक प्रॉब्लम ये था कि अगले महीने पैसा कहाँ से आएगा. मतलब चल $2,000 आ गया, 4 लोगों की टीम है, फिर एक प्रोजेक्ट, हमेशा ये दिमाग में रहता था. देन आई रियलाइज कि ऐसे जिंदगी भर तक तो चलेगा नहीं. तो आई थॉट कि वी नीड टू बिल्ड अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. तो उस टाइम पे हम लोग बहुत देखते थे, गूगल अपने प्रोडक्ट्स ला रहा था, दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट बना रहे थे, हम बहुत फैसिनेटेड थे. और वर्डप्रेस एक बहुत अच्छा टूल था जो हम देखते थे कि उस टाइम पे था. तो आई रियलाइज कि अगर इस लेवल का अगर हमने प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोडक्ट बनाया तो हम यहाँ से कुछ चेंज कर पाएंगे. तो दैट वाज द होल आइडिया कि हम कैसे शुरुआत करी. फिर हमने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन हमको पता नहीं था इसको बेचेंगे कैसे. सो वी केप्ट इट फ्री फॉर 3 years, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता था कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया तो वेबसाइट बनाने से अच्छा अब हमको लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कॉस्ट देंगे. तो जो अगले महीने के लिए हम 1 महीने वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनने में 1 साल लगेगा, तो 1 साल तक का फिक्स्ड अमाउंट होगा. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया. 2011 में अपॉइंटी 2008 में हमने बेसिक वर्जन बनाया, 2011 में हमने उसको फ्री तक रखा, और हमको उस बीच में काफी SaaS प्रोडक्ट्स बनाने को मिले, और जैसा हमने सोचा था वैसा चल रहा था. 2011 में हमारे 2 कस्टमर्स थे, दोनों बैंकरप्ट हो गए बिकॉज उनसे उनकी कंपनी चली नहीं, एंड सडनली हमारे पास कोई कस्टमर्स भी नहीं थे. और उसी दिन हमको रियलाइज हुआ कि हम जो है एक कस्टमर का मेल आया कि हम अपॉइंटी यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री प्लान नहीं यूज करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कंपनी, हम पेड प्लान है. तो हमने कहा हमारे पास है ना पेड प्लान. हमारे पास कुछ था नहीं, हमने पेड प्लान लॉन्च किया. पहले महीने में हमारे पास 38,000 रुपीज आए, 1,000 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चालू किया, 38,000 रुपीज आए. क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था, इसलिए हमको इंडिया में हम ये सब ले नहीं सकते थे, सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं था उसमें. तो फिर हमने हमारे कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग करा, सब कुछ यूएस वगैरह में किया, और फिर उसके बाद हमने काम शुरू किया. पहले महीने में 38,000, अगले महीने में और 70,000, 1 लाख रुपए महीना रिकरिंग, मतलब अगले महीने फिर आना है, सोचना नहीं है. और वो भी 100 अलग अलग कस्टमर्स से. तो दैट वाज विनिंग मोमेंट फॉर अस. और देखते ही देखते 6 महीने में हम $10,000 महीना पहुंच गए. और जैसे ही $10,000 महीना पहुंच गए तो तब रियलाइज हुआ कि अब हमारा राइट तरीका है, हमको यहाँ पे जाना है. फिर 2014 में हमको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, माइक्रोसॉफ्ट से अवार्ड मिला, पता नहीं कहाँ से अवार्ड मिले. इकोनॉमिक टाइम्स फ्रंट पेज, इकोनॉमिक टाइम्स होल इंडिया क्वार्टर पेज न्यूज छपी, रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी. लेकिन उस टाइम पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी अपने लाइफ में, जब कंपनी बना रहे थे. तो उस कंपनी बनाते टाइम बिजनेस डिस्प्यूट हुआ यूएस में, हम 2015 में वापस जीरो हो गए. और जैसे ही जीरो हुए उसके बाद समझ में आया कि इसको, फिर हमने 2014 दिसंबर को अपनी कंपनी वापस ली. वापस से हमने शुरू किया जीरो से, और जीरो से शुरू करके हमने रियलाइज किया कि क्योंकि वो ऐसा फेज था हमारा जिस टाइम पे पुरानी टीम सारी छोड़ने की कोशिश कर रही थी, नई टीम हमको मिल नहीं रही थी, और हमारी सैलरीज उस टाइम, हम लोग 200 स्क्वायर फीट के ऑफिस से काम करते थे हमारे घर से. तो हमने एक ऑफिस बनाया 3,000 स्क्वायर फीट का, ताकि लोगों को बुला सकें. हमने सोचा इंटर्न्स को हायर करते हैं, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं दे सकते. तो इंटर्न्स को हायर किया. फिर समझ में आया कि हम हमेशा हायरिंग गलत करते थे. हमें फ्रेशर ही हमेशा हायर करने थे, एक्सपीरियंस लोग तो शायद कभी हायर करने नहीं चाहिए थे, क्योंकि हमारे कंपनी में वही सिलसिला हमेशा चलता आया था. तो हमने वो हायर किया, और देखते ही देखते हमने जितना हमने 15 साल में नहीं बनाया था, उसका 6 महीने में उससे डबल कर लिया. सिर्फ 6 महीने लगे हमको वापस से उस फॉर्म पे आने में. फिर उसके बाद देखते ही देखते हमको समझ में आया कि हमको एक इस लेवल का प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिस लेवल में हमको हमारे चैलेंजेस पता थे. 15 साल के बहुत सारे वर्टिकल्स को एक्सेप्ट करते थे, अपॉइंटी का बहुत ब्रांड था मार्केट में. तो हमको समझ में आया कि जो नए लोग आते हैं, चाहे वो IIT से आए चाहे NIT से आए, हमारे प्रोडक्ट में बहुत उनको मेहनत लगती है ऑनबोर्ड होने में. और हमारा प्रोडक्ट जो है वॉकिंग नॉलेज हो गया पुरानी टीम के लिए. उनको लाइन नंबर याद थे कि इस कोड में यहाँ पे ये गड़बड़ी होगी, इसलिए ये हो रहा है. तो उनको इस टाइप से चीजें याद हो गई थी. तो ये हमारे लिए अलार्म था. हमने पूरा कोर्स डिसाइड किया कि हम पूरा कोड शुरू से लिखेंगे. उसके लिए हमने एक टीम बनाई फ्रेशर्स की, IIT से हायर किए, NIT से हायर किए, सब जगह से हायर किए, पूरा कोड लिखा. हमने ऑफिस बनाया उन लोगों को रिटेन करने के लिए, क्योंकि हमने जब वो 3,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया तब हमको पता चला कि ऑफिस कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी को रिटेन करने में. 2 साल में हमने 3,000 के ऑफिस से 10,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में शिफ्ट हो गए. और वो ऑफिस हमने ऐसा बनाया कि जो कि मिनी गूगल, लोग हमको मिनी गूगल ऑफ MP समझते हैं, उस लेवल पे हमने ऑफिस बनाया. ऑफिस से बहुत सक्सेस मिली. फिर हम जैसे जैसे ग्रो करने लगे तो हमने बहुत एंटरप्राइज डील्स क्लोज करी. तो दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी हमारी कस्टमर है आज, ठीक है, ऑलमोस्ट $1 मिलियन हमको देती है. दुनिया की
जो यूरोप की जो नंबर 1 कंपनी है, वो हमारी आज कस्टमर है। तो हमने एंटरप्राइजेस में भी बहुत सारी चेंजेस लेके आए, रिटेल प्रोडक्ट में भी चेंज किया। और इस पूरे प्रोसेस में हमारी जो टीम है, जो इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारी टीम है, जो ये नए बच्चे आ रहे थे, इन्होंने ग्रोथ करी। मतलब जो मुझे 20 साल लगे ग्रो करने में, मेरा और उनका नॉलेज अगर हम आज देखें, थोड़ा एक्सपीरियंशियल नॉलेज अलग करते हैं, तो अगर मेरा और उनका नॉलेज देखें तो जो मैंने 20 साल में किया है वो उन्होंने 3 साल में नॉलेज गेन किया है। तो ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया है, उस डिफरेंस से आप आगे देखोगे कि कैसे बहुत सारी कंपनीज अब धीरे-धीरे भोपाल में डेवलप होंगी। और यही हमारा फ्यूचर प्लान है जो हम इसको एनविजन करते हैं। और अब हम बेसिकली ऑफिस का हमको पता चला, तो अब हम एक 3.5 एकड़ का यहाँ पे कैंपस बना रहे हैं भोपाल में। और उम्मीद ये है कि उस कैंपस को बनाने के बाद यहाँ के सारे आईआईटीज, प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों को एक डायरेक्शन देंगे। और कुछ लोग जॉब में आएंगे, कुछ लोग अपनी कंपनी बनाएंगे, और हम अपने भोपाल में जो हम इकोसिस्टम देखते हैं स्टार्टअप का, उसमें काफी बड़ा योगदान देंगे। तो ये थी अभी तक की पूरी जर्नी। Great. So we were like more of your journey and appointee की journey. It's common, and a lot of students जो जो ये journey जो सुन रहे हैं, जिन्होंने इसको सुना है, so I would just like to मैं उसको साथ ये कहूँ कि like Nimesh, you got failed many times, and every time you failed, a new you took that as an experience, and you realize कि yes, something was going wrong and this is another way. तो ईश्वर कभी यूनिवर्स आपको कभी नीचे गिराता है तो शायद वो अलग दिख रास्ता, बिकॉज आप कहीं और को बिलोंग करते हो. सो फेलियर्स आर योर स्प्रिंग बोर्ड्स फॉर द नेक्स्ट सक्सेस. टेक इट लाइक दैट, एंड definitely it gives you new opportunities, new people in life, and we really feel proud that the way appointee is representing Bhopal and Madhya Pradesh, we really feel proud. Yes, Shika, you want to ask something? So, as you said, you lose, you manage, and you again grow. So, sir, should I do a job or should I start my own business? What should I do at this point? स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब आज स्क्रीन में हमारा आमना सामना हो रहा है निमेश So जी, I तो think there is no uh, यस. सो पीपल से कि मैं बोलता हूँ भाई प्लेसमेंट्स इज इम्पोर्टेंट, लेट्स डू जॉब. समटाइम्स पीपल लुकिंग एट यू विल फील कि लेट्स डू बिजनेस एंड ब्रिंग समथिंग लाइक अपॉइंटी. तो ये बड़ा विरोधाभास बच्चों में रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिखा ने पूछा. योर कमेंट्स, यस निमेश. तो मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है. यस तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस यस. हाँ, वी कैन हियर यू. ओके, सो आई थिंक आई विल हैव टू रिकनेक्ट बिकॉज मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम, जस्ट. So Nimesh will be coming back, and today we will be very having a very candid discussion on being a startup, being into job, and if into job, how we can grow with job. And so we made this tagline to be growing with entrepreneurial attitude and multiplying your uh, salary or your money into 10 times, and how Nimesh did, and how you can also do it. It's nothing big, but it's all about believing yourself and taking it from there. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के मन में जो रहता है कि हमको जॉब्स करना चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, तो वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट. एंड ये एक मिथ है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते. विद इन द जॉब ऑल्सो यू हैव टू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज. अगर आप अपने जो जॉब को एक टास्क आपको डेली मिलता है, हर हर ईयर देयर इज अ न्यू task with you. So to handle that task, you have to be entrepreneur. So we have Nimesh, and yes. So the question was job versus a startup.
as a young Yeah, student fresher? सो देखिए, सी इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जॉब भी बहुत अच्छा है और स्टार्टअप भी बहुत अच्छा है। इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं आईआईटी एक दिन करूंगा और मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, तो आपने गोल गलत बनाया है, राइट? अगर आप ये सोचते हो कि मैं आईएएस बनूंगा और फिर मैं बहुत पैसे बनाऊंगा, तो भी आपका गोल गलत है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने गोल क्या बनाया है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप सोचते हो कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा और मैं बहुत पैसे बनाने के लिए बनने की कोशिश करूंगा, तो ये आपका गोल हमेशा गलत है। पैसा आप देखो हमेशा आउटकम है, क्योंकि आप क्या फॉलो करते हो। अगर आप जॉब में जाते हो तो हमारा सोच क्या रहती है कि बेस्ट पैकेज मिलना चाहिए, कि मेरा पैकेज शुरुआत कहाँ से हुआ, 10 लाख से शुरू हुआ, 20 से शुरू हुआ, 25 से शुरू हुआ, ठीक है? ये स्टार्टअप में आप लोगों का जो आप 4 लोगों के बीच में आप जनरली दिखाते हैं, और जैसे ही आता है आपके फेसबुक पे चला जाता है कि मैं आज दुनिया का मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे जिंदगी का गोल खत्म हो गया, आज मुझे जॉब मिल गया जो मैंने जिंदगी में सपना सोचा था। तो वेल एंड गुड, आपने जो गोल बनाया आपको मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने छोटा सोचा, इसलिए आपको छोटा गोल मिला। तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। वो गोल डिसाइड करता है कि वो आप जो कर रहे हो वो सही है नहीं। तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो आप जॉब में जाओ, ठीक है? कोई हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा टफ है। उसमें टफ है मतलब आपको शायद 12 घंटे 16 घंटे काम करने को पड़ सकता है, ठीक है? हो सकता है कि लोग आपकी, जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो आप पैसा ना बना रहे हो, ठीक है? लेकिन ये बात याद रखिए कि लाइफ जो होती है ना, कि आज का जो वक्त है वो गुजर जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आज का तो गुजरेगा ही। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आपका बुरा चल रहा है तो अच्छा आएगा, अच्छा है तो बुरा आएगा। तो ये ऐसे ही आपको ये भी सोचना चाहिए, आपको अपने फील्ड में भी ये चीजें सोचनी चाहिए कि अगर वो अच्छा वक्त है तो आप बनाओगे कैसे उस वक्त को। तो वो गोल जो होता है ना, वो आपको डिसाइड करता है कि आप कैसे लेके जाओगे। तो दोनों जॉब बिल्कुल सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा एम करते हैं कि मुझे जॉब करना है, तो आप अपने से पूछिए वाई, वाई क्यों करना है। और फिर अगर आप बोलते हैं कि मुझे सपोज कीजिए कॉग्निजेंट में मुझे जाना है, हमने बहुत बार देखा है, ऐसा देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे क्या होता है, उनका एम कैसे बनता है। आप किसी से ही बात करो, तो उनके यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख से कम की कंपनी आती है, तो उनके गोल कैसे होते हैं कि मुझे कॉग्निजेंट में जाना है, मुझे या तो टीसीएस में जाना है, या तो मुझे ये लाइफ के गोल्स हो जाते हैं उनके। उनके जो गोल वो होते हैं जो पार हो जाए, विजन जो होता है वो कभी पहुंचते नहीं है। तभी हम जीवन को सही ढंग से जी पाते हैं। तो अगर हम एनआईटीज में जाते हैं या आईआईटीज में जाते हैं, तो बोलते हैं मुझे अमेजोन में जाना है, मुझे गूगल में जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं तो गूगल ज्वाइन करूंगा, ठीक है? हम लोगों को समझाते हैं कि आपका लाइफ का गोल क्या, एम्प्लॉय बनना था क्या, हमेशा किसी की नौकरी करना था क्या? तो आपने ऐसा गोल बनाया कि मैं किसी के यहाँ जाके एक दिन नौकरी करूंगा, तो ऐसा गोल हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, और जिसको हम समझाते हैं उसका गोल बन जाता है मुझे अपॉइंटी में जॉब करना है। तो वो लोगों को समझ में नहीं आती वो चीजें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप वाई आंसर करो, क्योंकि अगर आपने वाई आंसर नहीं करा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप वो गोल पे पहुंच जाओगे, फिर आपको लाइफ है ना, आपको डायरेक्शनलेस लगेगी कि आप क्या करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको समझना है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वाई आंसर कीजिए। Well said, sir. Well said. That really. And sir, one more question. What is the best way to get 10 plus offer, job offer? ओके, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मुझे लगता है। हमारे स्टूडेंट्स Sir, थोड़ा we सा we actually judge companies with the package they offer, है ना शिखा? So she has yes. a question कि अगर if you want to get something around 10 plus lakhs package, so what to be done? So it is a common myth that people and it is a sad reality or a true reality that कितना पैकेज है उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन होता है कि कैसी है, जाऊं कि नहीं जाऊं। और अगर जिसको 10 लाख का पैकेज मिलता है उसको 25 का ऑफर दो तो बोले एकदम से कूद के चले जाएगा, हाँ वो ज्यादा दे रहा है उसके पास चले जाओ। 10 वाले को आप 12 14 भी मिल जाओगे ना, बोलेगा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, चले जाता हूँ, वो 12 दे रहा है 10 दे रहा है। सो वी ऑलवेज हैव दैट तराजू in our hand ki when we look at companies, someone is offering 5 lakhs, another 7 lakhs. So Shika has a higher benchmark, she's asking 10 lakhs plus का बात करो सर, कैसे होगा? आपको बुलाया है तो आप 10 lakhs प्लस का ही बात करो, और कोई आया होता तो आई वुड हैव आस्क्ड कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि Yeah. दुनिया में जो सबसे आसान काम है ना, वो है पैसे कमाना, ठीक है? लेकिन हमारा डायरेक्शन क्योंकि वो पैसे की तरफ चला जाता है, इसलिए हम बाकी चीजें देख नहीं पाते, जिसकी वजह से। तो अगर आपका ये सवाल ऐसा है कि मैं कॉलेज से निकलते ही 10 लाख का पैकेज लूं, ये सवाल है आपका, या 10 लाख के पैकेज तक कैसे पहुंचू, ये सवाल है आपका। आप म्यूट हो।
कॉलेज से निकलते से ऑब्वियसली, बिकॉज पेरेंट्स और फैमिलीज तो यही पूछेंगे ना सर कि क्या पैकेज लगा. Parents, तो family से ज़्यादा she has to post in Instagram and all the social sites placed in this, in package this. तो देखिए जो पैकेज है ना 10 लाख के ऊपर, इसका बहुत सिंपल आंसर है. ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि आप उस कंपनी के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपको कोई 10 लाख रुपए दे. बहुत सिंपल है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम तैयारी किस चीज की करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, पहला हमारा जो माइंडसेट शुरू होता है ना, वो होता है कंपटीशन से शुरू होता है. ठीक है, कंपटीशन किसके लिए, शायद माँ बाप के लिए, माँ बाप से ज्यादा शायद पड़ोसी के लिए होता है, क्योंकि पड़ोस में माँ बाप के भी एक्सपेक्टेशंस ऐसे लगते हैं कि हमारा बच्चे के लिए दुनिया को ऐसा लगना चाहिए. वहां से शुरू होती है कहानी पूरी. तो ये जो, अगर आप 10 लाख के पैकेज पे आप पहुंचना चाहते हो, मतलब कि आप लेना चाहते हो, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए. अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम बोलते हैं कि कंपटीशन में अपन पार्ट लेते हैं, और वो जो ऑनलाइन कंपटीशन टूल्स है उसमें जाते हैं और अपनी जिंदगी उसमें बिताते हैं, और कई घंटे लगा के रैंक ले आते हैं. 5,000 रैंक, 3,000 रैंक, 2,000 रैंक. हमारे पास इंटरव्यूज में आते हैं 2,000 रैंक है मेरी, 1,000 रैंक है मेरी. ठीक है, मैं इसमें बेस्ट हूँ. और आप रिज्यूमे में देखोगे ना, तो आपको हर जगह कंपटीशन दिखेगा. ठीक है, कंपटीशन कैसा, कि मैं फुटबॉल में फर्स्ट आया था, मैं चेस में यहाँ आया था, वो सारी चीजें आपको हमेशा रिज्यूमे में दिखेंगी. ठीक है, अच्छी बात है, आप खेलना बहुत अच्छी बात है, आप उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, सीखने के लिए पार्टिसिपेट करो, अच्छी बात है. लेकिन जहां पर आप ये कॉम्पीट करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके दोस्त आपका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. तो अगर आप सोचो कि आपके यहाँ पे एक कंपनी आती है जो 10 लाख का पैकेज दे रही है, तो आपका माइंडसेट वहां 10 लाख में, आपने 10 क्यों पूछा, आपने 20 क्यों नहीं पूछा. तो पहला सवाल यही है कि हमारा जो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट जो होता है, हम हमारे क्षमता के बाहर नहीं सोच सकते. हमें लगता है कि एक प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख मिलना बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो हम सोच नहीं पाए. फिर जब हमको काम करना है, अभी अगर अगर आज हमको किसी को हायर करना है, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल सोचो. ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल्स, कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हमने उनको कैसे हायर किया. हमारा जो पैकेज है वो 19 लाख से शुरू होता है फ्रेशर्स के लिए. और हम लोगों ने एनआईटी से बच्चे हायर किए, एनआईटी से किया, आईआईटी से किए, एलएनसीटी के बच्चे हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं, सब सारे मिक्स बच्चे हैं. तो उनकी हायरिंग हमने करी कैसे. ठीक है, 2 बच्चे थे आरजीपीवी से आए, और उन्होंने बोला कि मैं बिजी था, तो मैं वेट कर रहा था, मतलब वो लोग वेट कर रहे थे. तो मैंने उनको बोला कि आप लोग एक काम करो, आप हमारा नेट यूज कर लो, और मैं तब तक अपना काम निपटा लेता हूँ, आप बोर ना हो. तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम नेट यूज कर रहे हैं. तो मैंने बोला कि नहीं, आप हमारा नेट यूज कर लो, मूवी भी देख लो. तो उन्होंने बोला नहीं सर, आप ही का नेट यूज कर रहे हैं. तो मैंने कहा आपको किसी ने दे दिया हमारा पासवर्ड. तो बोले नहीं. तो फिर मैंने पूछा फिर कैसे किया. बोले सर हमने हैक कर लिया. तो मैंने बोला ठीक है, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, कल से आ जाओ. पहले दिन आए, सबसे पहले काम दिया, हमारा वाईफाई ठीक करो. ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपको पैशन होना चाहिए. अभी आप सोचो कि कोई बच्चा टॉप करके, वो कंपटीशन में टॉप करके, एल्गोरिदम में टॉप करके आया होता, और वो केबिन में बैठा होता, फिर वो इंतजार करता है कि मेरे से कौन सा एल्गोरिदम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि हम कोई पूछते ही नहीं. तो आपको क्या पता कौन क्या सवाल पूछने वाला है. तो हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन होते हैं. आपने सांप देखा, एकदम अचानक से आपके सामने सांप आ गया, आप क्या करोगे. ठीक है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. सिर्फ आप क्या है, उस टाइम पे वो कंपटीशन के बारे में सोच के एल्गो सॉल्व करोगे, या फिर आपके पास इतना एबिलिटी कि आप उसको उस टाइम पे काउंटर कर सकते हो. और देयर इज नो राइट और रॉन्ग. आप जंप कर सकते हो, आप भाग सकते हो, आप पकड़ सकते हो, पता नहीं, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स. लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप होता है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज से डेवलप होता है. तो देयर आर 2 थिंग्स, स्किल बेस्ड स्किल होता है, एंड देयर इज नॉलेज. स्किल क्या होता है, एक्सेल है, एक्सेल आपने सीख लिया, ये स्किल है. ठीक है, लेकिन एक्सेल से जो आप काम करके आउटपुट दे रहे हो, एक्सेल में बहुत सारे काम हो सकते हैं. आप एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो. ठीक है, आप अकाउंटिंग कर सकते हो, अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो. लेकिन अब अगर आप अकाउंट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे. और आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी क्या होता है, ये कैसे लगता है, ये क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंशियल नॉलेज है. तो आपके पास है ना, स्किल जो है ना बहुत आसान है. एक्सेल सीखने में क्या टाइम लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, कोई स्लो भी होगा. तो अब एक्सेल के बेसिस पे किसी को जॉब तो मिलना नहीं है. तो जो स्किल बेस्ड हायरिंग होती है, हम इस पे ध्यान नहीं देखते कि आपको आता क्या है. जनरली लोग क्या देखते हैं कि आप कितनी जल्दी सीख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और जब तक आप किसी से कॉम्पीट करते हो, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते. तो आप वो सीख रहे हो क्योंकि जो वो सीख रहा है. ठीक है, तो ये पहला, अगर आपको करना है तो आपको सीखना है. अगर आप आईटी में हो तो कंपटीशन की बजाय आप सॉफ्टवेयर सीखो.
आप सिर्फ ये सीखो, आपको ये भी नहीं जानना, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं सीखनी, आप तो सिर्फ ये सीखो कि नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई तो क्यों आई। आपके पास इसका आंसर है ना, तो आपको अपने आप नॉलेज आ रही है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सी शार्प की .NET सीखो, ठीक है, जो दोनों सीख रहे हैं उन सबका करियर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि यही लर्निंग स्टेज है, आप जिंदगी भर तो सीखोगे नहीं। उन लोगों की लाइफ 10 साल और होगी, चलिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, फिर क्या होगा। तो सवाल ही गलत है, हमारी सोच गलत है, ठीक है। और अगर आप सोचो कि किसी ने हैकिंग सीखी और उसने सीधे जॉब ले लिया, ठीक है, हमने सेल्स के लोगों को कैसे हायर किया कि जो सोसाइटीज होती हैं कॉलेज में, तो 2 सोसाइटी आई हमको पिच करने कि आप हमसे लो, ठीक है। तो एक हमने बोला कि आपसे क्यों ले, दोनों को बैठाया और डिबेट करा दिया आपस में, ठीक है। तो एक ने हमारी वैल्यूज के बात करी कि आपको ये फायदा होगा, एक ने अपनी वैल्यूज की बात करी कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमको ये फायदा होगा, ठीक है। तो बस ये बेसिस पे हमको समझ में आया कि ये लोग क्या समझते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये इतने मैच्योर हैं कि नहीं, ऐसा है क्या, ठीक है। जो हमारा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो कंटेंट राइटर है वो केमिकल इंजीनियर है, जो हमारे यहाँ फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर्स, ठीक है, वो सिविल इंजीनियर है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर ये जो मैंने आपको जिसकी स्टोरी सुनाई, जो जिन्होंने हैक किया था, ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी लोग हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, सब अलग अलग फील्ड्स हैं। तो डिपेंड नहीं करता है कि वो किस स्ट्रीम में है, किस में है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि वो उन्होंने सीखा क्या। सिविल इंजीनियर को ये था कि कभी डैम नहीं बना पाऊंगा, या शायद सिविल में जॉब्स नहीं है, इसलिए उसने सीख लिया इतना कुछ। और उसने, उसके पास, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसने 2 साल में 30 लाख की कार खरीदी, मुझे 15 साल लगे, उसने 2 साल में खरीदी। तो ये डिफरेंस है जो आप क्रिएट कर सकते हो। ट्रू। सो डेफिनेटली निमेश, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप भी फ्रेशर से सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। एंड ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज दैट नंबर वन दैट फ्रेशर्स हो, आप अगर यूथ हैं तो आपको भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड मे बी आप किसी कंपनी में अपीयर कर रहे हैं, but that is not the end. That is the starting point, and that confidence, and definitely there is some thing called luck, but luck always comes to people who are well prepared for it, who have that mindset कि वो एक वाईफाई का पासवर्ड वो बोलता, हाँ सर वील मैनेज, वी आर जस्ट वेटिंग, नो वरीज सर, नो वरीज। बट ही वॉज वेरी फ्रैंक एंड उसने बोल दिया ठीक है, मेरा क्या ज्यादा, बोल देता हूँ, मैं कोई नौकरी के लिए थोड़ी ना आया, इंटर्नशिप के लिए आया। तो सो ही वॉज नॉट इन दैट शेप। अगर वही मे बी आई हैव सीन पीपल कि वो मान लीजिए टीसी, वो अपने कॉलेज में टीसीएस का इंटरव्यू दे रहा था, तो ही वुड बी मोर नर्वस। देयर वाज लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर, यूनिवर्सिटी का प्रेशर, किसका होगा, इसका नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हम उसी में झूलते रहते हैं। बट यहाँ एक वाईफाई, हाँ ले लिया, कैसे क्या हैक कर लिया यार, कोई ऐसी कोई बड़ी बात। सो दैट, अरे यार ये हैक कर सकता है, मतलब हमारे वाईफाई में दम नहीं है। सो इवन ऑनेस्टली the youth is always looked upon for creating the future। हम ये कैरियर पाठशाला भी आपके लिए कर रहे हैं। तो आज ये यूथ में वो लीडरशिप है जिसको कहीं ना कहीं आपको खुद को भी अपने आप में एक भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पे एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड मतलब डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि जॉब चाहिए, डेस्परेट बिल्कुल। सो दैट डेस्परेशन किल्स योर होराइजन। तो शिखा, स्टार्ट थिंकिंग फॉर 20 lakhs, not 10 lakhs. So at least that horizon should increase. But Nimesh, I have also seen a lot of freshers going into companies, and then after 4-5 years, their growth rate is something not very common। कोई जाता है 4 लाख से तो वो 5 साल बाद 8 लाख में पहुंचता है, कोई 4 लाख में घुसा वो 28 लाख पे पहुंच गया। सो इवन दैट मैटर्स। हम लोग कई बार एज अ फ्रेशर सिर्फ ये सोचते हैं कि जॉब लग जाए फिर तो सब हो जाएगा। तो बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि जॉब लग जाए, मतलब उनके ज़माने में होता था लाइक माई फादर, जॉब मतलब ही बाय द टाइम ही डिड हिज ग्रेजुएशन ही हैज 4 ऑफर्स गवर्नमेंट जॉब्स के। सो मे बी दे फील दैट जॉब लगना इज अ सेफ्टी, इज अ सिक्योरिटी। बट आफ्टर जॉब, हाउ, व्हाट इज योर आई some tips or some views of for students ki after jobs how they can again grow in their jobs? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये हम लोग जनरली सारे स्टूडेंट्स को समझाते हैं, क्योंकि हमारा काम है उनको डायरेक्शन देना। और डायरेक्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कई साल लगे अमेरिका ढूंढने में, और आज हम अमेरिका 16 घंटे पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो आज का सिनेरियो समझते हैं पहले कि आज क्या क्या होता है।
हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 5 लाख रुपए की सैलरी से हम शुरू करते हैं, ठीक है? कहाँ पे शुरू करते हैं? शायद हम, क्योंकि सबके एस्पिरेशंस क्या होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, यहाँ जाएंगे, यहाँ बहुत सारी कंपनीज भी हैं और हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो हम लोग 5 लाख में कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद सोचते हैं कि फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, तो हमने 5 लाख का एक्सपेंस नहीं, 5 लाख में जो सीटीसी है उसमें से जो इन हैंड सैलरी आती है वो मेरे ख्याल से 40,000 से भी कम आएगी, ठीक है? 40 से भी नहीं, मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास आएगी। तो अगर 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 के बीच में सैलरी आई, तो आप किसी बॉम्बे इन सब में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप वैसे सर्वाइव वहाँ पे करना है, तो आप क्या करते हो, शुरू में 4 लोग साथ में रहते हो, तो आपके साथ वाले लोग या वहाँ से आपको जो मिले होते हैं वो भी कहीं से भटके हुए पहुंचे होते हैं। तो आप क्या करते हो कि वो आप 4 लोग मिलके एक रूम लेके रहने लगते हो, तो आपकी क्यूमुलेटिव सैलरी होगी 20 लाख रुपए। बहुत अच्छा है, 20 लाख रुपए में तो आप वहाँ पे राजा हो गए। तो क्यूमुलेटिव सैलरी होगी 20 लाख रुपए। लेकिन क्या होता है, फिर आप ग्रो करते हो। अब ग्रोथ है ना, 2 तरीके से बढ़ती है, ठीक है? जो लोग समझते हैं। एक ग्रोथ बढ़ती है कि कितना पहली जो ग्रोथ होती है कि हम स्विच कर रहे हैं जॉब को, कि ठीक है मेरी आज 5 लाख रुपए, लेकिन वो कंपनी मुझे 7 लाख देने को तैयार है, मैं चलो वहां स्विच कर लेता हूँ, ठीक है? मतलब ये कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी को समझ में आता है कि ये है, ठीक है? दूसरा होता है कि महंगाई कितनी बढ़ी, ठीक है? उससे जॉब में आता है, तो आपको जो ग्रोथ मिलती है वो 10 से 15%, मतलब ज्यादा साइड हो गया ये, 10 से 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट मिलती है अगर आप उसी कंपनी में रहते हो। तो लोगों को सिर्फ ये 2 चीजें पता है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, ठीक है? लेकिन असली में ग्रोथ इनकी वजह से नहीं होती। ग्रोथ, अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ठीक है, इस ग्रोथ में आपको रेट फिक्स है कि 10% या फिर एक्स अमाउंट ऑन जंपिंग, ठीक है? अगर आपको ये पता हो जंप कितने दिन करोगे आप, चलो आप 3 बार जंप कर लोगे, 4 बार जंप कर लोगे, इससे ज्यादा जंप करोगे तो सारी कंपनी को पता चल जाता है आप जंप करो, वो लेना बंद कर देगी आपको, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, अगर मैं देखूं तो सैलरी को डबल करने का जो आज आपने 5 लाख से शुरू किया है, 10 लाख करने में शायद आपको आप 6-7 साल लग जाएंगे पहुंचते हुए, ठीक है? और अगर आपने जंप करके किया तो शायद 3-4-5 साल में पहुंच जाओगे। तो दूसरा क्या तरीका बचता है कि आप ग्रो करो, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है, वो सब लोग मिस कर देते हैं। वो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है नॉलेज, ठीक है? क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया था कि 10 लाख का पैकेज चाहिए, तो आपने ये तो पूछा नहीं कि वो 10 लाख में काम क्या करने वाला है, आपने पूछा 10 लाख की 15 लाख, आपने फटाक से 15 लाख चूज कर लिया। अब 15 लाख में आपने ये तो पूछा नहीं कि वो सामने वाला आपको प्रोग्रामिंग लिखाएगा, झाड़ू मरवाएगा, आपने सोचा ही नहीं। आप तो एक्सेल में जिंदगी भर काम करते रह गए जाके, तो आपको तो कोई नॉलेज आया ही नहीं, ठीक है? और वो उनके लिए 15 लाख सही है क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल निकाला हुआ है, क्योंकि यूएस से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आपको अगर उतनी सैलरी दे रहे हैं तो उनका काम निकल रहा है, लेकिन आपका काम नहीं निकल रहा, राइट? सो ये आपको सोचना समझना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज कैसे चेंज होता है, ठीक है? नॉलेज कैसे आता है कि आप ये सोचो कि आज हमारे सर्वर्स डाउन हो रहे हैं और हमें एक बंदा चाहिए जो कि हमारा डेटाबेस मैनेज करे, ठीक है? हम ढूंढ रहे हैं एक बंदा जिससे 15 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अचानक से एक स्टूडेंट आता है, बोलता है अरे ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर देता हूं, मुझे आता है, ठीक है? और वो अगर ऐसा बोलेगा तो हम उसे क्या ऑफर करेंगे, राइट? तो इतना जरा सा सोच है जो आपको चेंज करनी है, ठीक है? आप, और आपको क्या होता है कि एक एग्जांपल है कि जनरली आप क्या करते हो, मछली पकड़ने निकल जाते हो, ठीक है? आप ऊपर ऊपर से मछलियां पकड़ते हो, ठीक है? क्योंकि, और मछली पकड़ना टफ है क्योंकि मछलियां उछलती भी रहती हैं, ठीक है? कई घंटों लगते हैं मछली पकड़ने में, ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरीके से, क्योंकि आपको लगता है कि समुद्र में मछलियां ही बेस्ट मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप समुद्र में डीप जाते हो तो आप उसमें मोती ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि डीप जाने में खतरा कितना है, आप डरते हो। वो जो डर है ना, वो डर आपके दिमाग में है खाली, ठीक है? अगर आपको ये पता चल जाए कि एक आपके डाइविंग सूट होगा, डाइविंग सूट में से आप नीचे जा सकते हो और आप नीचे जाके मोती हैं आप उठा के ला सकते हो, तो मछली पकड़ने से ज्यादा आसान है और वैल्यूएबल भी ज्यादा है। ये सोच नहीं है लोगों के पास आज। तो ये जो सोच है ना, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और ग्रोथ जो होती है, नॉलेज होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ जो जिन्होंने 19 से ज्वाइन किया था, 19 के पैकेज पे ज्वाइन किया था, ठीक है, उनके पैकेजेस अगर हम आज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 साल में ऑलमोस्ट डबल के क्लोज हैं। और उनके पास वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास अगला पैसा कब आएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ हैकिंग वाले बंदे का। वो बंदे ने सिक्योरिटी में बहुत काम किया, एक्सपर्ट बना, और उसने बहुत सारे फेसबुक को, ओपेरा को सिक्योरिटी डिस्क्लोजेस किए, जो भी सिक्योरिटी होल लूप होल्स थे वो डिस्क्लोज किए। वो उन कंपनियों से 3-3 से 4-4 हजार डॉलर महीना कमाता है वो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हमारे यहाँ काम करके। तो हम उसको सैलरी भी अगर हम उसको 2 लाख भी महीना देंगे तो भी उसके लिए वो उससे ज्यादा कमा सकता है, लेकिन वैल्यू उस चीज की है ही नहीं,
वैल्यू जो है वो टीम के साथ, अगर वो यहाँ नहीं काम कर रहा होता तो उसको नॉलेज नहीं आता, ठीक है, वो शायद वाईफाई हैक कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि या फिर वो कहीं और चला गया होता तो शायद मतलब वो हमारे लिए तेंदुलकर है, कहीं और चला गया होता तो उसे कोई बैटिंग नहीं सिखा के उसे बॉलिंग सिखा देता, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो आपको समझना है कि देखो पहले आप तेंदुलकर हो और आपको बैटिंग करनी है, और बैटिंग करने के लिए ये मेरा कोच है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आप अगर नॉलेज के ऊपर फोकस रखते हो, कंपटीशन की तैयारी, मैं देखा है बुक्स पढ़ते रहते हैं, मतलब हम एजुकेशन सिस्टम में इतना बिलीव करते थे, किसी ने एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, अब क्या करोगे, पूरा बदल गया, 12th ही खत्म हो गया अब, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप वहां पे काम करो जहां पे आप सीखो, ठीक है। हम हमारी टीम को सिर्फ ये बताते हैं कि हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिस लेवल का प्रोडक्ट गूगल बनाती है, नेटफ्लिक्स बनाता है, इतने हाईली स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम उस लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। कई लोगों को अपनी जिंदगी में, मुश्किल गिनती के 0.1% लोगों को जिंदगी में इस टाइप का काम करने का मौका मिलता है, वो काम करके वो उस लेवल पे पहुंचते हैं, आज उनको कोई डर नहीं है। कोरोना आया, दुनिया की इतनी सारी कंपनी डाउन हो गई, ठीक है, हमने फिर भी बोनस दिया, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं, 3.5 एकड़ पे अपना नया ऑफिस बना रहे हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने हमारे जिंदगी में फेलियर्स देखे और उन फेलियर से सीखा और हमेशा सीखते रहे, और उस सीख की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। ऐसे ही जॉब में भी ऐसे होता है, तो आप उसको सीखते रहिए। आप नॉलेज अगर आपने लेना छोड़ दिया, कंपटीशन में चले गए क्योंकि उसका जॉब इतना है, पैकेज इतना है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता लाइफ में, ठीक है, जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो ना उससे हारी जाने वाले हो, या उसके जैसे बन जाओगे, इससे ऊपर नहीं निकल पाओगे। सो वेरी राइट वर्ड्स ऑफ विजडम। ऐसी चीजें सिर्फ पढ़ के ऐसे नहीं आती हैं। इट्स बिकॉज आई हैव एटलीस्ट सीन यू एंड पीपल हैव सीन यू ग्रोइंग, वर्किंग, फेसिंग challenges every day, every moment, taking competition in a right spirit to grow and develop. एक बहुत अच्छी बात कही दिमेश जी ने कि we should not limit ourselves, we should take that risk, and knowledge is the ultimate gear or ultimate support system for you to, so you should keep growing that knowledge. हमको उस मानसिकता में नहीं रहना है कि जहां हमको हमारे आसपास के फ्रेंड्स या वो ये कहते हो कि दिस इज अ गुड इनफ फॉर यू, so there is nothing good enough for you, maybe you have to define that good enough for you. So uh, quite important talk. So this is something which a lot of students could take away and think on it. Yes, Shikha. Yes, sir. And so we are getting a lot of comment that this is a cheerful session. It's going in a live session. I mean, that's going. The students are loving this session. So, sir, as you just said, that these pressure by cars and your entire team goes on company paid international offsite something sort of thing. I mean, how are these things working? I mean, they are doing so good, and how is that? So Shikha Okay, wants to know that you take your entire team. The startup culture is very popular. That Appointee takes their team to on-site holidays to, I think, Singapore, Dubai, and whatnot. पूरी की पूरी टीम आपकी अच्छा हुआ कोरोना आ गया, इस साल नहीं गए, नहीं तो they keep jealousing people that you guys are going out and having fun. And you were talking about that you're one of your fresher in just 2 years could buy a 30 lakh rupees car, but a lot of people working in Amazon for 4 years, 5 years still have to think on that. तो इट्स ऑल अबाउट द एम्पावरमेंट यू गिव टू योर फ्रेशर्स। तो उसके बारे में ऐसा क्यों करते हैं, आप भी करते हैं, कई स्टार्टअप कंपनीज करती है, तो so is that something to save tax, or you want to do something which gives them the second level of exposure, and how is it? तो मैंने आपको बताया कि हमेशा है ना वाई पूछना जरूरी है, राइट। तो कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो पहले हम वाई समझते हैं कि क्यों करते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि शायद हम लोग भोपाल से, पूरी टीम भोपाल से हायर करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर नहीं होता है, तो हम हमारे जो नॉर्मल रोज़मर्रा के न्यूज़ आती है ना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि आज ये हो गया, उस न्यूज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, और माइंडसेट हमारा वहीं पे कन्फाइन हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है, ओपन करना सबसे पहले, कि ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं चले दुनिया में क्या चल रहा है ना, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल कंपनी,
ग्लोबल प्रोडक्ट बनाते हैं दुनिया में। अगर हम समझते नहीं कि अगर हम कंपनीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, कंट्रीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम खाली इंटरनेशनल ऑफसाइट्स नहीं करते। अगर हम जैसे हमारे, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी जो है वो हमने जब उसके लिए प्रोडक्ट किया, तो हम यहाँ से हमारे जितने भी ये थे फ्रेशर्स थे, वो गए थे हमारे साथ सारे। तो हम उनको लेके गए थे ताकि वो समझें कि वो लोग ड्रीम करते हैं कि उस कंपनी में मुझे काम करना है। आज हम बोलते हैं कि देखो आज उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो तुम, और वो लीड करते हैं प्रोजेक्ट। तो हम हमेशा वाई आंसर करते हैं। तो वाई में अगर हम इंटरनेशनल ऑफिस क्यों करते हैं, वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो लोग यहाँ से हैं उनको कल्चरल नॉलेज ना मिले, वो ट्रैवल करें और कोई भी पीछे ना रह जाए। तो बाहर जाते हैं तो उनका नॉलेज बढ़ता है कि जैसे अगर आपने जो भी कंट्रीज बोली हैं, ये सारी कंट्रीज इंडिया से कोशिश करते हैं डेवलप कंट्रीज में जाएं, ताकि वो समझे कि फ्यूचर क्या है इंडिया का और आगे जाके क्या होने वाला है चेंज, और उसको हम आज कैसे पोटेंशियली उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली मोटिव रहता है। वरना घूमने के लिए तो हम गोवा भी जा सकते हैं। तो इस बार हम लोग यूरोप गए थे, पूरी टीम को यूरोप लेके गए थे, काफी सारी कंट्रीज घूमे यूरोप में। और दूसरी बात कि अगर आप, ये है कि हमारे एम्प्लॉयज ऐसा क्यों करते हैं, तो शायद ये सोच हमने उनको दी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी पहली लग्जरी कार 15 साल बाद खरीदी करियर में, मतलब ग्रेजुएशन के 15 साल बाद खरीदी। और 15 साल के बाद खरीदने के बाद क्या होता है कि मतलब हो सकता है कि करियर में कोई इतना आगे बढ़े ना बढ़ पाए। तो जो टाइम होता है, जो सबसे लीस्ट रिस्क होता है, वो लीस्ट रिस्क होता है। लोग आपको क्या सिखाते हैं, सेविंग्स करो, ठीक है, करियर के शुरुआत में सेविंग्स, विच डजंट मैटर, ठीक है, कितना सेव कर लोगे आप सैलरीज में। तो हम उनको क्या सिखाते हैं कि आप सेव मत करो। जो सेविंग है ना आपकी, वो नॉलेज है, आप नॉलेज बढ़ाओ, और जो सेविंग्स है ना उसको आप इंजॉय करो, ठीक है। तो हम उनको बताते हैं कि आप कार खरीदो। क्योंकि कई लोग क्या होता है, आपने ये तो सुना होगा कि हमारे लोग लग्जरी कार खरीदते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे कंपनीज के लोग 1-1 करोड़ के घर भी खरीद लेते हैं, ठीक है। बॉम्बे में रहते हैं तो वो तो अपनी जिंदगी के 30-40 साल के लिए घर ही बुक कर लेते हैं, और उसमें ईएमआई चालू हो जाता है उनका। तो ये जो सोच है, इसको चेंज करने के लिए हमने उनको बताया कि देखो, नॉलेज से पैसा बढ़ेगा, पैसा तो आने वाला है, ये बात इंश्योर रखो। और लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। मतलब आज आपका लग्जरी कार है, आप 25 साल के हो, ठीक है, और आप 25 साल में आप कार नहीं चला रहे हो, आप बाइक चलाओगे, तो आपने एंजॉय क्या किया। आप 40 साल में बाइक कार खरीदोगे, चला के कर क्या लोगे। तो एंजॉयमेंट का यही टाइम है, आप उसको खरीदो। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उनको कार खरीदनी चाहिए। हम फोर्स नहीं करते, मोटिवेट करते हैं कि आप कार खरीदो, बेस्ट लैपटॉप खरीदो, बेस्ट लैपटॉप पे काम करो। जो कंपनी से होता है हम देते हैं, हम सबको जनरली मैकबुक्स देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो मैकबुक्स भी होती हैं वो 1.5 से 2 लाख की होती हैं। तो वो हमारा वाई आंसर करती हैं सारे। तो हम उनको ये फील नहीं करने देना चाहते कि आप किसी दूसरी कंपनी में होते तो इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलती। तो हम उनको उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको जीना सिखाते हैं। और जो शायद टाइम की कमी थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने लाइफ में उस तरीके से वो सारी चीजें पहले अचीव करें जो मैंने 15 साल में अचीव करी, वो लोग पहले अपने 3 साल के करियर में अचीव करें। So I'll take one related question in short of time regarding to jobs only. Then we switch our direction towards startup and business. Because we try to cover both jobs and the startup business, or rather it is one only. करना आपको ये चाहे जॉब हो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो. So he wants to know more about कि हमें पैकेज पे ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार का जॉब हमें मिल रहा है. तो ये ऑलरेडी आई थिंक आपने आंसर कर दिया, बट एनीथिंग यू वांट टू ऐड मोर. स्टूडेंट्स मोस्टली ये देखते हैं मुझे पैकेज ये 16 लाख दे रही है, और ये मान लीजिए दूसरी कंपनी 12-14 लाख दे रही है. तो इज इट ओनली वी शुड लुक एट पैकेज और लुकिंग एट पोजीशन और द टाइप ऑफ जॉब? any comments you want to add? You already answered this, I think. हाँ देखो क्या होता है, गुड कंपनी विद गुड पैकेज, ठीक है, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम इज कि हमें गुड की डेफिनेशन नहीं पता, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे लिए गुड की डेफिनेशन है कि वो बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, यहाँ पर है वहां पर है, ये हमारी डेफिनेशन गुड की है। गुड की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि आपके लिए गुड है, उसके लिए गुड है। मतलब आप ये समझिए कि आज आप अपॉइंटी में, आज अपॉइंटी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम शायद 5,000 10,000 लोग हो जाएंगे। उस टाइम पे शायद हम सब लोगों से जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको ऐसा सोचिए, इसको इस तरीके से सोचिए, आपको गुड कंपनी ढूंढनी है ना, आप ढूंढिए गूगल या टीसीएस या कॉग्निजेंट। जब वो कॉग्निजेंट टीसीएस गूगल नहीं थे, जब बन रहे थे,
इस टाइप की कंपनीज को आप ढूंढिए, ये गुड कंपनीज हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और आपको लेके जाएंगी। और बहुत कुछ सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेन फ्रेम में जा रहा हूँ कि टेस्टिंग में जा रहा हूँ कि जो मुझे सही जगह डाल रही है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है गुड की, है ना, कि मुझे मेन फ्रेम पसंद नहीं है और मेरे को टेस्टिंग पसंद है तो मैं मेन फ्रेम में जा रहा हूँ तो ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मेन फ्रेम कोई किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर वो है तो क्या वो कंपनी बेस्ट काम करती है। फॉर एग्जाम्पल गूगल एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, अमेजॉन एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर काम करते हो और वो आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर आप। और एक बात आप हमेशा याद रखो, जो आपका पहला बॉस होता है ना, वो आपका लाइफ बनाता है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि आगे कहाँ जाने वाले हो, आप उससे इंस्पायर होते हो, वो आपका पहला आइडल बनता है। ये आप हमेशा याद रखो। तो अगर आपका बॉस ऐसा है जो आपको बोलेगा कि यार अपने को 5 साल में मैनेजर बनना है, ठीक है, तो वो आपको सिखा रहा है कि 5 साल में मैनेजर कैसे बनोगे आप, ठीक है। और अगर आप किसी फाउंडर के साथ काम करते हो तो वो आपको कैसे क्या सिखाएगा कि जो कंपनी उसने 20 साल में बनाई है आप 5 साल में कैसे बनाओ। तो ये आपको समझना है कि आपको किससे सीखना है। तो अगर आप अमेजॉन में जाते हो, वहां पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, आप उसके साथ काम करते हो, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो 10 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर बना है, तो वो आपको क्या सिखाएगा कि 5 साल में कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बना सकता है। तो ये उसका नॉलेज है ना जो उसने गेन किया, वही तो आप शेयर करोगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। आपका पहला बॉस आपका करियर बनाने वाला है, ये आप याद रखो, ठीक है। और अगर ऐसा कंपनी आप ढूंढ पाते हो, ठीक है, जो कंपनी जिस कंपनी के अंदर फाउंडर के साथ आपको सीधे काम करने का मौका मिलता है। और मैं ये रिस्क जरूर है, स्टार्टअप में रिस्क होता है, मतलब लेकिन स्टार्टअप में मतलब ऐसा स्टार्टअप में रिस्क नहीं जो स्टार्ट हो रहा है उसमें रिस्क है। लेकिन कोई कंपनी 3-4 साल से चल रही है और प्रॉफिटेबल भी हो रही है तो वो स्टार्टअप नहीं है। वरना तो आप ओयो रूम्स में भी आप देखोगे तो उनको भी प्रॉब्लम है, आज तो प्रॉब्लम सबको है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि और कई कंपनीज तो ऐसी हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुए लेकिन फिर भी सैलरी कम कर दी, है ना। तो अच्छा कौन हुआ। तो आपको ये इस टाइम पे आपको पता चलता है, जब इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं तब आपको पता चलता है कि कंपनीज कैसी हैं। आपने सुना होगा कि टाटा ने बोला था कि जो अपनी टीम के साथ सही नहीं कर सकता वो सही कंपनी नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो गुड कंपनी की डेफिनेशन सही कीजिए, ठीक है। गुड कंपनी गुड जॉब दोनों सही है, लेकिन गुड कंपनी और गुड जॉब की डेफिनेशन सही कीजिए। Sure, sir. As you said, dream big and have a good friendship or have a good guidance. And with this, I would like to ask a question that what is the best way to start a business and how can we minimize the risk of becoming an ठीक है, entrepreneur? तो पहले रिस्क समझते हैं कि रिस्क होता है क्या है, ठीक है। अगर आपने आज बिजनेस शुरू किया तो आपका रिस्क क्या है, ठीक है। आप फेल हो जाओगे, पहला, ठीक है। वो फेल हो गए तो टाइम खराब हो जाएगा, दूसरा। तीसरा, अगर आप फेल हो गए तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, है ना, क्योंकि आपको आपकी कोई पोजीशन तो है नहीं, क्योंकि आप किसी कंपनी में जाते तो एक डेजिग्नेशन मिलती है, आप डेजिग्नेशन से ऊपर ऊपर बढ़ते हैं। लेकिन स्टार्टअप में आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने पैसा गवाया, टाइम गवाया, ठीक है, और आप फेल भी हो गए और अब आपके पास करियर नहीं है, ठीक है। ये रिस्क है, तो यही रिस्क है। लेकिन ये आपको लगता है कि ये रिस्क है, जबकि ऐसा होता नहीं है रिस्क। जैसे हमारी टीम में हम लोग क्या हायर करते हैं, हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो अपने किसी स्टार्टअप में फेल हो गया, ठीक है। हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं। आप अगर गूगल में देखोगे, अमेजोन में जाके देखोगे, तो ऐसे लोगों को लोग हायर करते हैं कि जो स्टार्टअप में फेल हो गए, ठीक है। लेकिन वो फेलियर का रीजन क्या था वो समझते हैं कि अगर आप बहुत एरोगेंट हो, आप ओपन माइंडेड नहीं थे, आपने लोगों की सुनी नहीं, इसकी वजह से आप फेल हो गए, तो हमारे लिए भी नहीं सुनने वाले, यू आर आउट, ठीक है। तो अगर आप में ग्रैटिट्यूड, स्टार्टअप क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड डेवलप करता है आपके प्रति। आप 3 साल तक फेल होते हो, आप निराश होते हो, आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो लोगों की तरफ। लेकिन आपके पास अचानक से आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाए तो आप में एक ईगो आ जाता है, ठीक है। आप किसी से ये नहीं करते। तो सही क्या है, सही तो ये है कि आप में वो ग्रैटिट्यूड डेवलप करना है। आपने कभी ये सुना है कि टाटा है, अंबानी है, ये लोग, इनमें बहुत ठहराव है। ये लोग कभी अपन देखते हैं कि वो टाटा नीचे बैठे हुए हैं, है ना, तो हमारे पास एक न्यूज आती है। तो आप इसको ऐसा सोचते हो कि बड़े लोगों के बड़े होते होते विजडम नहीं आता है, जिनमें विजडम होता है वो लोग बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आप स्टार्टअप से सीखने वाले हो, ठीक है। तो पहला, देयर इज नो रिस्क, पहला, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अब रिस्क नहीं है, वो प्रेशर होता है। जो आप बोल रहे हो ना, वो प्रेशर है। प्रेशर क्या है, माँ बाप का प्रेशर, पहला, ठीक है, जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अब माँ बाप का प्रेशर क्या होता है, अब माँ बाप तो
आपका अच्छा ही सोचते हैं हमेशा, गलत तो सोचेंगे नहीं। तो अगर आपके माँ बाप आपका अच्छा सोच रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनको मना नहीं कर पाते, ठीक है, और आपको भी क्लैरिटी नहीं होती तो आप उनको समझा नहीं पाते, ठीक है, ये सब सबके साथ होता है, सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, तो आप समझा नहीं पाते। और उसके अलावा कौन होता है, हमारे रिलेटिव्स और हमारे पड़ोसी, ये उसमें और वो करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैलेंज है, ठीक है, शादी नहीं होगी अगर स्टार्टअप करो, किसी ने किया है क्या, शादी कैसे होगी तुम्हारी, फिर ये कैसे होगा, बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल जिसके आपके पास क्या उनके पास भी आंसर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर होता है, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास प्रेशर होता है। अब इस प्रेशर को कैसे कम करें, रिस्क को कम नहीं करना है, प्रेशर को कम करना है, तो प्रेशर को कैसे कम करें, पहला ये है कि फाइनल ईयर के बाद क्या होता है कि फाइनल ईयर से जैसे आप निकलते हो तब क्या होता है कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस लोगों के आसपास बढ़ जाते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है, नौकरी नहीं थी 2001 में, तो मम्मी पापा को लगता था अरे कहीं नौकरी नहीं है, इसके लिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, सिर्फ अनुसार की लग गई थी उस टाइम पे, ठीक है, तो बाकी किसी की नहीं लगी तो टेंशन नहीं था कि किसी की तो जॉब नहीं लगी तो कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, 4.5 साल में बी करी तो वो भी प्रेशर कर लिया, यार कुछ तो कर लेना जिंदगी में, खा पी तो लेगा ना, तो प्रेशर ही नहीं था। तो क्या होता है जब आप प्रेशर नहीं होता ना तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो जब आप प्रेशर कब नहीं होता, प्रेशर नहीं होता आपको थर्ड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर में भी होता है, थर्ड ईयर में प्रेशर कम हो जाता है। तो थर्ड ईयर सबसे बेस्ट टाइम है आपका करियर को चालू करने के लिए। अब इसमें करा क्या जाए, थर्ड ईयर में करना क्या चाहिए, तो थर्ड ईयर में आपको करनी चाहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स किसी स्टार्टअप के अंदर, ठीक है, जहां पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, कुछ खोना नहीं है। अब आप थर्ड ईयर में भी सोच रहे हो वो पैसा ज्यादा दे रही है, वो कम दे रही है, वो एमएनसी है, तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है, आप तो एक बेस्ट स्टार्टअप ढूंढो जिसके साथ आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर पाओ, ठीक है, और वो गोल बना, उस टाइम का गोल क्या होना चाहिए कि मुझे इंटर्नशिप करनी है बेस्ट स्टार्टअप में, ये गोल होना चाहिए। वहां से आप लर्निंग शुरू करो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स भूल जाओ, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट है सारे, ठीक है, मतलब हम तो क्या करते हैं, जैसे आईआईटी एनआईटीज और इंजीनियरिंग में आया है वो, ठीक है, आईआईटी में भी पहुंच गया, एनआईटी में पहुंच गया, अब वो एल्गोरिदम क्यों पढ़ रहा है अभी भी, मतलब ऑलरेडी वो टॉप 200 टॉप 500 में ऑलरेडी आ चुका है, दुनिया को ऑलरेडी बता चुका है, अभी भी वो टॉप कंपटीशन की कोडिंग की तैयारी कर रहा है और वो कंपटीशन में बैठ रहा है और फिर भी बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, आप मुझे हायर करो, ठीक है, तो ये कोई वैल्यू ही नहीं ऐड होती। वैल्यू क्या ऐड होती है, आप एक असली प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जिस दिन आप कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, ठीक है, उस दिन आपको आपका जो करियर है ना वो पहला मोड़ ले लेगा। और पैसे कमाना तो बहुत आसान है, आप पानी लेके रेगिस्तान में पहुंच जाओ और 100 रुपए ग्लास बेचो, बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप एंटरप्रेन्योर बन गए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो आप, क्योंकि आप पानी वहां तक पहुंचाओगे कैसे जहां कोई नहीं पहुंचा पाया, ये सीखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। Rightly said. And I want to take one question, काफी पहले से आया था पलक पहला जानी का, कि how would you define the conventional culture shift from job to startup? वो ये कह रही है कि कन्वेंशनल कल्चर है जॉब से स्टार्टअप की ओर जाना। Also, how would you guide new startup owners to keep going without initial funding? So probably it's with your example, you as a bootstrap की फंडिंग कई लोग स्टार्टअप इसीलिए शुरू करते हैं क्या इसको मैं आगे इतने साल बाद बेच दूंगा। मतलब many of the startups in their vision and think कि हम इतना स्केल होंगे and someone will acquire us. So probably they raise their babies to give it to someone कि okay now you can be of them. So any thoughts, comments on this? तो देखिए पहला पहला सवाल जो कन्वेंशनल कल्चर शिफ्ट से जॉब की तरफ की बात है ना, सबसे पहले ये जो है ना, आप है ना बेसिकली अपने अभी एक एरिया में हो, कंफर्ट जोन में हो, और उस कंफर्ट जोन को आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, दिस इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टार्टअप का कल्चर है वो कॉर्पोरेट के कल्चर से मच बेटर है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है, कोई किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गलत कब बोलते हैं, जब लोग फ्री होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स तब चलता है, ठीक है, स्टार्टअप में पॉलिटिक्स नहीं होते, ठीक है, स्टार्टअप में क्या होता है, काम इतना ज्यादा होता है कि आपको ये सब चीजें करने का मौका नहीं मिलता। तो क्या है, देर इज, सो इवन आई ऑलवेज बिलीव कि जो कल्चर होता है, और दूसरा आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जो कल्चर होता है, ठीक है, वो कल्चर आपका ऑफिस स्पेस और ऑफिस ये सब नहीं होता। कल्चर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कल्चरल वैल्यूज क्या, लर्निंग है, कि हम क्या मानते हैं कि अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है आपको, तो आप कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे जिसने टॉपर दिया है,
और 20% रिजल्ट है, या वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे जिसका 90% रिजल्ट है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप वही ज्वाइन करोगे जो 90% रिजल्ट देता है, क्योंकि वो जो दूसरा वाला है उसमें हो सकता है कि जो फर्स्ट आया है वो उसकी काबिलियत है। तो हम इंश्योर करते हैं कि अगर हमारी टीम जो है हर साल 90% टीम जो है ना ग्रो करनी चाहिए। तो 90% अगर टीम ग्रो कर रही है तब हमारी कंपनी अच्छी है। अगर 2-4 लोग ग्रो कर रहे हैं तो हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये कल्चर है हमारा, ये होता है कल्चर। तो अगर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कॉर्पोरेट का कल्चर बहुत अच्छा होता है, राइट, तो वो एक्चुअली आपका कंफर्ट जोन है। ठीक है, दूसरा आपने सवाल पूछा था कि कैसे बेसिकली स्टार्टअप किया जाए बिना पैसे के। ठीक है, तो वी आर बूटस्ट्रैप कंपनी, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, पहले तो काम वो कीजिए जिसमें आपका पैशन हो, क्योंकि इतनी आसानी से सक्सेस मिलनी है नहीं। तो पैशन होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। कोई भी चीज आप मेरा मानना ऐसा है कि आप 10 साल तक बनाना शुरू कर दीजिए, घड़ा बनाइए 10 साल तक, और 10 साल बाद आप करोड़पति हो गए। मतलब आप कोई भी एक काम करना शुरू कीजिए, उसको फोकस करते हुए 10 साल कीजिए, लाइफ आपको उस डायरेक्शन तक पहुंचा देगी, आपकी जर्नी में पहुंचा देगी। बस बीच में आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो दूसरा क्या है कि जब आप बनाना शुरू करते हो कोई भी चीज़ है, तो आप शुरू कैसे करते हो? ये लर्निंग है कि मतलब आप 10 साल में सीखते हो। तो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पर आप जो अपने ज़िंदगी के 10 साल में जहाँ पे आप वो 1 करोड़ रुपए बनाने वाले थे या करोड़पति बनने वाले थे अपने पॉट्स को बेच-बेच के, ठीक है? वो कैसे आप 1 साल में करो, ये गाइड करते हैं। अब मेंटर्स होते कौन है? ठीक है? अब मेंटर्स के लिए आपको किसी को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको ढूँढना नहीं है कि अच्छा निमेश के पास चलते हैं, निमेश के पास शायद टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बुक्स आर द बेस्ट मेंटर्स। ठीक है? बस आपको वो बुक पढ़नी है। मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो आप मतलब 5 एएम क्लब रॉबिन शर्मा आप पढ़ सकते हो, राइट? लेकिन मुझे नहीं पढ़ना तो मैं नहीं पढ़ता। तो बुक पढ़ना अलग चीज़ है, और बुक उस चीज़ की पढ़ना जिसमें आप काम करना चाहते हो वो अलग चीज़ है। ठीक है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बिना पैसे के आप काम कैसे शुरू कर सकते हो? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आता है कस्टमर से। अगर आप अपनी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट से आएगा पैसा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको ये करना चाहिए कि जो पैसा आएगा वो कस्टमर से कैसे आएगा। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कैसे होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप बनाने वाले हो। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने तक जब बनेगा, फिर आप जाओगे कस्टमर्स के पास, फिर कस्टमर मना करेंगे। इससे पहले आप कस्टमर से पूछ लो। ठीक है, कि फिर से हम कहते हैं कस्टमर फीडबैक। तो 2 ही तरीके से आइडियाज़ आते हैं। ठीक है? आइडियाज़ आते हैं प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम 2 ही तरीके से पता चलती है, या तो आप एक्सपीरियंस करो उस प्रॉब्लम को खुद, या फिर जिसने एक्सपीरियंस किया उससे पूछो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और अगर आपने देख लिया कि अरे फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा है, चलो मैं बना देता हूँ, तो इसका मतलब वो फेल होने वाला है डेफिनिटली। ठीक है? तो 2 ही तरीके से आपको आइडियाज़ आते हैं, और आप वो जो दोनों तरीके हैं उसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक दोस्तों यारों का नहीं होना चाहिए, फीडबैक कस्टमर का होना चाहिए जो पे करने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक पॉट बना रहे हो, मटका बनाने वाले हो, और वो जो है आपका 100 रुपए में बिकेगा कि नहीं, तो आप कस्टमर से सीधे पूछो कि 100 रुपए का मैं ऐसा, ये मेरी वैल्यू है, 100 रुपए में ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ, क्या आप खरीदोगे? अगर किसी ने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा, तो आप मटका मत बनाओ, आप सिर्फ बोलो एक, हम क्या करते हैं, हम ऐड डालते हैं और बोलते हैं ये हम फीचर ला रहे हैं, और वहां पर एक बटन देते हैं कि बाय नाउ। अगर जितने लोग उस वेबसाइट पे आए और उन्होंने बटन के ऊपर जितनी बार दबाया, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कस्टमर्स को चाहिए, और आप उनको लिस्ट आप बना लो और फिर प्रोडक्ट बना के उन्हीं लोगों को सबसे पहले पिच करो, तो आपके पास इनिशियल कस्टमर बेस भी है। ठीक है, तो ये तरीके हैं, ये आपको बेसिकली जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे ना, तो देर इज नो रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। आप बस सीखोगे, और जब आप सीख रहे होगे तो जो कर रहे होगे, मार्केटिंग कर रहे होगे, तो आप ढूंढो कौन सी बुक मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी है, किसने ऐसा किया है जो आपकी स्टेज पे था। अगर स्टीव जॉब्स की बुक पढ़ने जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे, फिर आपको हमेशा लगेगा फंडिंग लगती है। Very well said, and every story is a different story. You cannot just have one and आप उसी को follow करो. So something on Bhopal. Let's come to Bhopal, and lot of things. निमेश, आपका जीवन मेरा जीवन इस तालाब की नगरी में ही ठहर गया. So भोपाल हैज दैट वास्तु, दैट ठहराव वाला शहर है. एक बहुत बड़ा जलाशय, वो भी ठहर गया, हम लोग भी ठहर गए यहाँ के. बट हाउ यू लर्न फ्रॉम भोपाल? व्हाट आर लर्निंग्स इन भोपाल? मतलब क्या सबक सीखा आपने भोपाल से, क्या एक्सपीरियंसेस रहे?
And living in a city like Bhopal, how you connected and took this company not only for yourself but for a lot of freshers and people who want to actually work in that startup ecosystem in Madhya Pradesh. They look at Appointee as a good learning atmosphere and a good atmosphere for growth and knowledge. तो भोपाल में रह के कैसे ये हो पाया, ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझे कि अगर वो कोई भी शहर में है तो लर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए मैंने क्या है ना बड़े भोपाल में जब हम कंपनी शुरू करी थी तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि जहाँ पे सब लोग जाए ना वहाँ पे मत जाओ, वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया तो वैसी कंपटीशन में आप हमेशा फंस जाओगे। तो आपके पास आप पहले सोचो कि आप हो कहाँ पर और आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या वैल्यू है जो आप दे सकते हो। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा वैल्यू क्या, हमने हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो भोपाल के बारे में आज हम भोपाल को जानते क्यों हैं? सब भोपाल को क्यों जानते हैं? बेसिकली इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैस कांड हुआ था, और अगर आज हम किसी भी बाहर किसी भी दुनिया में अगर हम बात करते हैं भोपाल, तो लोगों को अगर भोपाल क्लिक करता है ना तो उनको याद आता है अच्छा यहाँ पे गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसलिए लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विजन था भोपाल को लेकर वो ये था कि भोपाल का हम क्यों, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे सिलिकॉन वैली, जब सिलिकॉन वैली नहीं था तो उसके पास, आज हम सिलिकॉन वैली को जानते हैं लेकिन किसी ने सोचा था कि सिलिकॉन वैली में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पहले होगी जब वो सिलिकॉन वैली नहीं था। तो किसी ना किसी को आके बनाना पड़ेगा उसको। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो सब लोगों ने मिस कर दी है। अब वो वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं यूएस में, मतलब बाहर के कस्टमर्स के लिए बेचते हैं, यूएस में, यूरोप में, यहाँ बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जो भोपाल में सैलरी, एवरेज सैलरी क्या है भोपाल में? शायद एवरेज सैलरी 5-6-7 लाख रुपए होगी, राइट? तो हमने अगर 5-6 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी है, अगर हम यहाँ पे किसी को बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए देंगे, ठीक है, तो पहला तो उसके लिए बहुत वैल्यू है क्योंकि 20 लाख रुपए इन भोपाल इज इक्वलेंट टू 40 lakhs इन बैंगलोर। सेम लाइफस्टाइल, टू मैनेज सेम लाइफस्टाइल भोपाल में 20 लाख लगेंगे तो बैंगलोर में 40 लाख लगेंगे। और अगर आपको सेम लाइफस्टाइल मैनेज करने यूएस में तो आपको 1 करोड़ रुपए लगेगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि यही सारे लोग अगर बैंगलोर में जाएंगे और हमारी किसी कॉम्पिटिटर कंपनी के यहाँ काम करेंगे तो उनका कॉस्ट हमसे हमेशा डबल होगा। ठीक है, तो उनका कॉस्ट हमेशा हमसे डबल होगा। अगर वो बैंगलोर में होंगे तो उनका कॉस्ट हमेशा हमारे से 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि चलो यार बैंगलोर की कंपनी से कॉम्पीट नहीं करते, यूएस की कंपनी से कॉम्पीट करते हैं और इंडिया में लोगों को वो वैल्यू देते हैं। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, टीम के लिए विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो लोग यहाँ पर लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग प्लेजर ले सकते हैं। बैंगलोर में तो चलो आपको 40 लाख देगा भी, आपने कार भी खरीद ली तो चला नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर वो प्लेजर भी है, ठीक है, 20 लाख रुपए भी है, प्लेजर भी है, मतलब पैसा भी है, प्लेजर भी है और लर्निंग्स भी है। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे रोक के रखी है। कॉम्पीट किससे करते हैं? इसी टाइप की कंपनी से करते हैं जो यूएस में। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिटेबल होना है, अगर वो $5 मिलियन कोट करेगी तो हम सेम प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए हम $1 मिलियन भी कोट करेंगे तो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अभी अगर हम किसी को 1 मिलियन कोट करते हैं और वो कंपनी 5 मिलियन करती तो हमारा जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ कि हमने क्या सीखा है कि कैसे कम से कम पैसे में बेस्ट प्रोडक्ट बनाना। हम वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस लेवल का गूगल, नेटफ्लिक्स इस लेवल के प्रोडक्ट बनाते हैं। और हम उन कंपनी से कॉम्पीट करते हैं, जो बाहर है कंपनी सारी। ठीक है, और उन लोगों को लेते हैं जिनको यही कंपनी यहाँ से लेके जाने वाली है बाहर। ठीक है, और उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी ही रहने वाली है जैसी यहाँ पर है। तो ये हमारा पूरा प्रोडक्ट है। अपॉइंटी जो है ये पूरा प्रोडक्ट है ये, इसीलिए हमारा कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। अगर आज हमारे जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना भी लेगा ना तो हमारे कॉस्ट पे नहीं चला सकता वो उसको। ठीक है, और इसमें तीनों विन विन सिचुएशन, हमारे लिए विन सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के लिए या एम्प्लॉइज के लिए विन विन सिचुएशन है, और कस्टमर्स के लिए हमारे विन विन सिचुएशन है। जहां पे ये तीनों विन विन सिचुएशन आती है, ये पैकेजिंग है। यही हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप अगर भोपाल से बेचने वाले हो कोई भी SaaS प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप उस लेवल पे जल्दी पहुंच जाओगे और आपको कॉम्पीट करना बहुत आसान होगा अगर कोई भी कंपनी में अगर RFP वगैरह में आप कॉम्पीट करते हो तो ये एडवांटेज है जो लोगों को नहीं दिखता है, जो किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, बैंगलोर चले जाते हैं, 4-4 घंटे वो ट्रैवल टाइम होता है उनका पूरा जिंदगी का। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं उसमें 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ टाइम आपने ट्रैवल में निकाल दिया लाइफ का।
तो ये सब उनको मैटर नहीं करता। तो ये सारा वैल्यूज हमने बेसिक्स पे काम किया कि दुनिया में इनको क्या प्रॉब्लम है, कंपनीज को क्या प्रॉब्लम है, और उन सबको फिक्स किया, और फिर हमने हमारी लोकेशन सिलेक्ट करी है। So, sir, how can one become like you? तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अगेन अपने जैसा सोचना नहीं चाहिए कि इसके जैसा बन जाओ, उसके जैसा बन जाओ। लेकिन अगर मुझे जो चीज़ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में सोचा है ना, वो अचीव कर लिया। लेकिन अगर ये मैं बात बोलता हूँ तो लोगों को लगता है अरे वाह किया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी ये बोलोगे जो भी मैंने सोचा था ना वो अचीव कर लिया। सिर्फ प्रॉब्लम ये है हमारे बीच में कि हम लोग है ना सोचते कम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बड़ा सोचना चाहिए। अगर किसी ने बड़ा नहीं सोचा था, ठीक है, अगर नहीं होता तो आज हमारे पास गूगल नहीं होता, गूगल सर्च नहीं होता, ठीक है। जब गूगल सर्च बना था तो उन लोगों ने भी तो गराज से शुरू किया था, नॉर्मल स्टूडेंट्स थे वो भी, ठीक है। तो बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो बड़ा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बड़ा सोचते हो तो ही हो सकता है। तो आपका गोल बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, स्टोरी में आपने सुना होगा कि मैं चाहता था कि यार फ्रीलांस मतलब कुछ पैसे कमा लूं, तो मैं बन गया फ्रीलांसर, बन गया, पैसे कमाने शुरू हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला टीम बना लेते हैं, तो टीम भी बन गई, बंच ऑफ फेलियर्स आ गए, ज्वाइन कर लिया, टीम भी बन गई हमारी, ठीक है। हमने सोचा प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट भी बना लिया हमने, ठीक है। फिर हमने बोला कि यार अब जिंदगी में किसी ने इतना सारा चीजें हुई, इतने डिस्प्यूट्स हुए, सब हुए, इस बार कंपनी का रिस्क असेसमेंट करके बिल्कुल प्रॉपर कंपनी खड़ी करनी है, और जितना काम 15 साल में किया है उतना 6 महीने में करना है, वो भी कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने बोला कि नहीं अब यहाँ से आईआईटी से हायर करेंगे, एनआईटी से हायर करेंगे, वो भी कर लिया हमने। बस इस पूरे इसमें सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या रह गया, सोचा, हमने सिर्फ सोचा छोटा। अगर मैंने सोचा होता ना कि गूगल सर्च बनाना होता या स्पेस एक्स का वो बनाना होता, तो शायद हम पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन हमने सोचा नहीं, ठीक है। तो हम क्या होता है कि हमारी जो बाउंडेशंस होती हैं, एक तो हमारे पे प्रेशर इतना रहता है ना, पीयर प्रेशर, तो आपका आउटपुट भी वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता नहीं अपनी क्षमता के बारे में, खुद नहीं पता आप लोग क्या 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 कर सकते हो, ठीक है। हम लोग एक जैसे गूगल आईओ वगैरह होता है, ऐसे अपॉइंटी आईओ करते हैं। उस अपॉइंटी आईओ में हम लोग स्टूडेंट्स को हायर करते थे, मतलब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के बाद वो आईओ में वीडियो पे जाते हैं और वो पूरा बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो एक आईआईटी का बंदा था, वो आया और उसने बोला कि जैसे ही मैं आया तो इन्होंने मुझे बोला कि ग्राफ क्यूएल का सर्वर बनाना है तुमको। तो उसने बोला कि ये पागल हो गए, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। तो हमने उसको बोला कि नहीं तुम बना लोगे, तुम देखना। तो उसने ये कैंप पे बोला कि मैं 2 महीने पहले आया, इन्होंने मुझे ये बताया कि ये बनाना है, और फिर 2 महीने बाद जिस दिन वो डेमो हो रहा था, 2 महीने हो चुके थे, और उसने बोला कि ये देखो मैंने बना लिया। और आज ये फेसबुक मतलब ग्राफ क्यूएल की साइट पे गो लैंग्वेज में जो हमारा सर्वर है ना, ऑफिशियल टॉप 10 में ओपन सोर्स टूल्स में है, और वो उस आईआईटी के बच्चे ने बनाया 2 महीने के अंदर, जिसे खुद नहीं पता था कि वो बना सकता है। और वो जो चीज उसने बनाई है, आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ, वो जो चीज बनाई है वो 75% ऑफ द कोड को कम कर देता है, ठीक है। जो भी कोड प्रोग्रामिंग में होता है, मतलब आप जो आपको 100 लाइन लिखते थे उसकी जगह आपको सिर्फ 25 लाइन लिखनी है, ठीक है। इतना कोड कम कर देता है, तो इतना, और वो भी गो लैंग्वेज में, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑप्टिमाइज लैंग्वेजेस में आज काउंट होती है। तो ये लर्निंग थी जो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा अपॉइंटी बनेगा, ठीक है। तो ये क्या लक फैक्टर थे, अभी तक सब कुछ किस्मत से चल रहा था, लेकिन अब किस्मत से नहीं चलता, अब हम गोल बनाते हैं, ठीक है। गोल बनाते हैं और गोल को रीच करते हैं। तो गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल बनाते टाइम आप ये बात हमेशा याद रखना, वाई। क्योंकि आपने बना दिया कि मुझे 10 लाख का पैकेज चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन अब जब आप वाई 5 बार वाई आंसर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो वाई क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो गोल बनाए, अगर आप सही गोल्स बनाओगे, है ना, और आप उसमें टाइम दोगे, तो आप पक्का सक्सेसफुल होगे। So goals show your capability, your strength, and your vision for your own career. And definitely, rightly said कि goals होने चाहिए and goals बनाने चाहिए. And goals change होते रहते हैं. एक पड़ाव की तरह होते हैं. आप एक पड़ाव, दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव में जाते हैं. और आपका जो गोल जब आप पहुंचते हैं तो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपकी एक नई सोच, एक नए पोटेंशियल को बढ़ावा देता है. So what is your goal now, Nimesh? Lot of startups and lot of youth look at कि ये तो ठीक है सर. तो what is अब आपको क्या लगता है? What is your goal on
like 9th August, if I'm asking what is your goal, so what is your goal? तो देखिए, मैं 40 का हो गया हूँ और आप भी शायद 40 के हो गए, तो हम दोनों तो 40 पे हो गए, तो गोल बनाने स्टेज पे जो होता है वो ध्यान तो अपने को गोल सही समझने के बनाना चाहिए। तो हमारा, अगर आप देखोगे तो हमारा गोल है कि अगले 3 साल में बिलियन डॉलर कंपनी बनना है भोपाल से, ठीक है? लेकिन ये कंपनी का गोल है, जो अपॉइंटी का गोल है, ये अपॉइंटी का गोल है कि बिलियन डॉलर कंपनी बनना है और अगले 3 साल में। तो उसके लिए हमने बेस ग्राउंड वर्क बहुत किया है, ठीक है? मतलब पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, पैसा कमाने की नहीं, पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बेसिक्स हैं उसको सही करें, ठीक है? तो वो हमने बेसिक्स, जैसे ऑफिस स्पेस चाहिए टीम के लिए, तो ऑफिस अभी हमने 3.5 एकड़ में बनाया। फिर अभी हम लोग टीम चाहिए, तो हमने टीम को पूरा क्रैक किया कि कैसे किसी भी फ्रेशर को हायर किया जाए, उसको कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उसको 1 महीने के अंदर वो प्रोडक्टिव हो जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ों पे काम किया। फिर कैसे हमने ये भी समझा है कि कैसे बिना इनपुट दिए लोग अपना काम खुद करने लग जाएँ, ठीक है? मतलब वो गोल्स बनाएँ, कैसे आउटपुट है। जैसे मैं आपको एक विक्ट्री बताता हूँ कि अभी हमने पिछले हफ्ते 4.5 करोड़ की एक डील क्लोज़ करी। तो उसमें जो सेल्स करी जिसने, वो भी, उसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो भी फ्रेशर है, उसको भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। जो अब ये प्रोडक्ट बना के डिलीवर करेंगे, वो भी फ्रेशर्स हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। और अच्छी बात ये है कि जब डील क्लोज हो गई तब मुझे बताया गया कि ये डील हो गई। तो ये हमारी विक्ट्री है, तो कि पूरी टीम को एम्पावर करना है कि वो लोग खुद डील क्लोज कर सके। तो पहला क्या है कि हमने तो हमारे मिलियन डॉलर जो भी पहला कमाना था कमा लिया, टीम को आना चाहिए कैसे कमाया जाता है, ठीक है? तो हमारा पहला गोल क्या है कंपनी का कि हमें बिलियन डॉलर कंपनी बनना है 3 साल में। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, व्हाई, क्यों बनेंगे हम, ठीक है? अगर मैं इसका व्हाई आंसर करूँ तो 3 साल में तो बन जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राइट? फिर हम सोचेंगे कि चलो 2 बिलियन कर लेते हैं, 5 बिलियन कर लेते हैं, ये कभी एंडलेस लूप है, खत्म नहीं होगा। तो वो जो व्हाई है ना, उसका मैं आपको आंसर करता हूँ। तो इस एज पे अगर कोई मैं ऐसा गोल बनाता हूँ कि ये होना चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक लिमिट के बाद आपको पैसे की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास सब कुछ होता है, ठीक है? तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप गोल ऐसा बनाते हो जहां पर, अगर आपको वैलिडेट करना है ना कभी भी गोल कि सही बना है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं, तो आप हमेशा देखो कि गोल कम्युनिटी को बेनिफिट करना चाहिए, ना कि आपको खुद को। अगर आपने ऐसा गोल बनाया है कि हम यहाँ पहुंचेंगे, तो वो कंपनी का गोल हो सकता है, आपका नहीं हो सकता। तो कंपनी का गोल है बिलियन डॉलर बनाना। और ये गोल क्योंकि मान लीजिए मैंने बनाया है, तो मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि मेरा इंडिविजुअल गोल है कि भोपाल को सास वैली जैसे खड़ा करना है, ठीक है? और यहाँ पे बहुत टैलेंट है और ये सब लोग बिलियन डॉलर कंपनीज बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमने जो ऑफिस बनाया हमारा 3.5 एकड़ का, इसमें हमने इसी माइंडसेट से बनाया कि यहाँ पर वो बिलियन डॉलर कंपनीज बनेंगी, हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। और कौन बनाएंगे पहले बिलियन डॉलर कंपनीज? ये जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं फ्रेशर्स, उनको डे 1 से हम बोलते हैं 5 साल में कंपनी बनानी है, 5 साल तक यहाँ पे ग्रो करना है, 5 साल बाद निकाल देंगे तुमको, ठीक है? और तुम्हें अपनी कंपनी बनानी है, और उस कंपनी बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजें लगती हैं? उनको टाइम लगेगा, पैसा लगता है, ठीक है? स्पेस लगता है, ऑफिस स्पेस लगता है, टीम लगती है, ठीक है? तो ये टीम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ऑफिस स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है? जो टाइम का प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया? क्योंकि जनरली वो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ उसी में है, ठीक है? तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसमें 80% कोड बाय डिफॉल्ट रेडी है, ठीक है? हाईली स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, 80% कोड बाय डिफॉल्ट रेडी है, आपको सिर्फ उसके ऊपर का कोड लिखना है। तो जो काम आप 10 साल में करने वाले थे, अब आप 1 साल के अंदर कर लोगे, ठीक है? तो 10 साल का तो प्रोडक्ट है नहीं जो आप पहले प्रोडक्ट, अभी आप 1 साल में 3 प्रोडक्ट बना के टेस्ट कर सकते हो और 3 में से 1 चल जाएगा। तो इस लेवल पे हमने वो उस लेवल का एक आर्किटेक्चर डेवलप किया है, इन हाउस डेवलप किया है, और इन्होंने डेवलप किया है। तो इन्होंने क्यों डेवलप किया है, हम इस लेवल का प्रोडक्ट क्यों बना पाए? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लोग अपने लिए काम कर रहे थे, ठीक है? कंपनी दे रही थी, लेकिन ये लोग अपने लिए काम कर रहे थे, क्योंकि इनको वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना था ताकि आगे जाके वो उसको यूज कर पाए। तो हमने ये सारा बना लिया है आज, जो हम पूरे में अनाउंस करेंगे, अभी हमने अनाउंस नहीं करा है उसको, ठीक है? तो हम लोगों ने वो प्रोडक्ट बना लिया। तो हमारा जो, मेरा इंडिविजुअल गोल ये है कि बिलियन डॉलर कंपनीज बनाना है, और वो कंपनीज यहीं से शुरू होंगी। और देखेंगे तो कोलगेट बनने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन बाबा रामदेव ने कम्युनिटी बना के, कम्युनिटी बेनिफिट के लिए कि सबको स्वस्थ बनाना है, सब करना है, यहाँ से शुरू करते करते कहाँ पे कहाँ कंपनी पहुंचा दी। तो जब भी आप इस टाइप का गोल बनाते हो जहाँ पे कम्युनिटी की हेल्प की जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली है ना आप वहां पहुंच जाते हो। क्योंकि
कम्युनिटी हेल्प कर रही है। अगर आज आप देखेंगे पतंजलि को, तो उनकी एक कम्युनिटी है जो उनको हेल्प कर रही है, ठीक है। तो वो जो कम्युनिटी का जो स्ट्रेंथ है ना, अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर आप 100 लोगों के बारे में सोचोगे तो 100 लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो यही हमारा बेसिकली जो $1 बिलियन बनाने का विजन ये है कि $1 मिलियन देखिए बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, वो खुद मेहनत करेगा ना, तो 5-6 करोड़ रुपए साल तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके आगे पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां पे बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी रुक जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि उसके आगे बढ़ा कैसे जाए, तो हम उसको $1 मिलियन $1 बिलियन का डिफरेंस कहते हैं। तो जो $1 बिलियन की रेस है, उसमें क्या होता है, आपको टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, ग्रैटिट्यूड सीखना पड़ता है, हेल्प करना सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है। तो हमारी टीम में मिनी सीईओज हैं, ये मिनी सीईओज अपना पहला $1 मिलियन बनाना सीखेंगे, और जब ये पहला $1 मिलियन बनाना सीखेंगे तो उसके बाद वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा अपने आप, ठीक है, जिससे अपने आप वो अचीव होगा। तो ये एक फ्लाईव्हील की तरह है कि आपने अपना पहला जो फ्लाईव्हील है उसको आपने स्टार्ट किया, पहला फ्लाईव्हील मारा, और अगले फ्लाईव्हील से अपने आप आपको हल्का सा पुश करना और अपने आप चल रहा है। तो हम जो $1 बिलियन केवल इसलिए बना रहे हैं ताकि टीम सीखे कि $1 बिलियन कैसे बनाया जाता है, और जब वो सीख जाएगी तब वो बनाएगी $1 बिलियन कंपनीज, और इस पूरे प्रोसेस में शायद हम पहली कंपनी होंगे जो बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सो दिस टाइप ऑफ विजन एंड दिस टाइप ऑफ opportunity appointee has and thank you Nimesh for showing all these opportunities to viewers। तो जो व्यूअर्स अभी हमको देख रहे हैं या बाद में भी आके शो देखते हैं, व्यूअर्स के एक डेफिनेटली वो घर पे होते हैं, कई बार आधा शो बीच में जाना पड़ता आना पड़ता है, बट जब भी वो जिस शो को देखेंगे, so Nimesh has a clear the opening of opportunities for people especially who are in Bhopal and Madhya Pradesh. So if they want to look at not only doing a job but creating their own startup from here, and so if appointee is going to offer them mentorship, hand holding, and making their dreams come true, because that is his dream, to make others people's dream come true। तो बहुत अच्छा एक ये मैसेज एंड बहुत क्लियर एक अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने अनाउंस किया है कि पीपल हु वांट टू जस्ट टेक दैट पैशन अहेड, कि वो ठीक है, जो मतलब वी हैव ऑलवेज कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जॉब लग जाए, बट कुछ लोग होते हैं जिनमें थोड़ा पागलपन होता है कुछ करने का, जैसे टू बी ऑन अ लाइटर साइड। व्हेन आई मीट निमेश, ही कीप्स टॉकिंग, आई रिमेम्बर दैट वी यूज्ड टू गो एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब 12-1 बजे रात, बीइंग बैचलर्स, एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द कोड एंड ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी। तो मैं उसको सुनता रहता था कि हाँ भाई कुछ है। आई नेवर नो कि वो क्या बोल रहा है, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग ऑन प्रोग्रामिंग, but just I was being there. So he used to explain me कि इसमें ऐसा होता है, we are writing something and we are making this product. So definitely it has been a great journey. So what is your offering for the viewers of today who are in Career Pathshala? निमेश की आप सबको कुछ दे रहे हैं, तो हमारी कैरियर पाठशाला के व्यूअर्स को भी कुछ दे के जाइए कि डू यू हैव एनी न्यू ओपनिंग्स एंड व्हेन इज योर प्लान्स टू स्टार्ट हायरिंग इंटर्न्स। आपने कहा कि 3rd ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप करना चाहिए। शिखा, इन विच ईयर आर यू? 3rd year, so she is in 3rd year, so and this is going to be live and recorded। I was So thinking your from the a options last and how from last half an hour I was thinking, sir, please tell about internship. I'm in 3rd year. I need it. I need it. I was like, just tell it. Tell about that something. so how appointee has an offering for the students of Career Pathshala and others in Bhopal or in any city of the country, in fact? So I think we are always hiring. हम लोग हमेशा हायर करते रहते हैं टैलेंट के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं, हमारा हायरिंग का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, बिकॉज हम इंटर्नशिप से हायर करते हैं, अपने कॉस्ट को पहले लो रखते हैं, पहले समझते हैं कि हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि नहीं। हम कभी भी ऐसे नहीं देखते कि हम किसी का इंटरव्यू लें और हायर कर लें। हम ये देखते हैं कि जिसके हम बात कर रहे हैं, क्या हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि वो ग्रो कर सकता है कि नहीं, और जो भी सामने वाले को भी लगना चाहिए कि क्या मैं इस कंपनी में ग्रो कर पाऊंगा, क्योंकि अगर कोई हमारी कंपनी में ग्रो नहीं करेगा तो वो कंपनी को कैसे ग्रो कराएगा। तो ये दोनों मैटर को हम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये समझो कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है ना, मैं 4 सवाल पूछता हूँ, तो कैंडिडेट को भी पूछता हूँ कि आप 3 सवाल पूछो मुझसे,
तो हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग हायरिंग करते हैं, और हम हमेशा हायर करते हैं। हम थोड़े से हायरिंग में चूजी हैं, क्योंकि हम ये बहुत इंश्योर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने मान लीजिए अभी एक ये टॉक दिया, हो सकता है बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाएं। ये जो मोटिवेशन है और स्टारडम होती है और मोटिवेशन, ये 48 आवर्स रहती है, कि फेसबुक पे कुछ चला गया तो 48 आवर्स के लिए, न्यूज में आ गया तो 48 आवर्स के लिए, और मोटिवेट हो गए तो 48 आवर्स के लिए। तो लेकिन आप क्या सही में सोचते हो? क्योंकि प्रॉब्लम होता है, किसी को डायरेक्शन मिलता है, फिर बाद में बोलते हैं नहीं मम्मी पापा कह रहे थे ऐसा, तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भटक जाते हैं अपने करियर में। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं जो सही में चाह रहा है हेल्प करने के लिए, और वो क्या हेल्प के लिए हेल्प करवाने के लिए आ रहा है, कि हेल्प हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो हम इस चीज के ऊपर पहले बहुत इंश्योर करते हैं। उसके बाद समझते हैं कि उसके बाद हमारा सेकेंडरी स्टेप होता है कि हम जिस स्टेज पे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ABCD नहीं पढ़ा सकते इंग्लिश में, और एक एग्जाम्पल, राइट, लेकिन अगर उसको बेसिक ग्रामर आती है तो हम उसको बेसिकली कंटेंट लिखा सकते हैं, ठीक है। अगर उसको ग्रामर नहीं आती तो हम नहीं हायर कर सकते। तो हम बेसिक सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में ऐसा है कि क्वेश्चंस हम भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम के क्वेश्चंस हम नहीं पूछते। कई बार हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो हम उसका आंसर्स नहीं जानना चाहते, हम सिर्फ एटीट्यूड देखते हैं कि उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा था कि जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया मैथ्स के, तो उसको कान को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ा है। तो मतलब जो 4 स्टेप में हो सकता है, हमेशा 8 स्टेप में होता है। लेकिन उससे मैं अपने आप को देखता हूँ, कभी भी कोई गलती करता है तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं यार, ये हो सकता है कि ये निमेश ही हो। तो मैं हमेशा इस बात में ध्यान रखता हूँ, और कई प्रोसेस से हम लोग उस सामने जज करते हैं। तो हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत प्रोग्राम में हम इंटर्नशिप में लोगों को हायर करते हैं। इंटर्नशिप के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद एक इंटर्नशिप को एक्सटेंड करते हैं। इंटर्नशिप में भी पेड इंटर्नशिप होती है, मतलब हम पैसे देते हैं। और उसके बाद हम जज करते हैं, 2 महीने की इंटर्नशिप को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि 3rd ईयर में लेते हैं। और फिर फाइनल ईयर के बाद या तो प्री प्लेसमेंट ऑफर हमारे पास से आता है, और हमारे पास जितने भी इंटर्न्स ने आज तक इंटर्नशिप करी है, ऑलमोस्ट 100% या तो किसी बड़े कॉलेज में चले गए, ठीक है, या तो IIM वगैरह करने चले गए, ठीक है, या फिर उनको 10 लाख प्लस का पैकेज मिल गया, ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि 10 लाख कैसे कमाए, अगर कोई हमारा इंटर्नशिप करता है तो वैसे ही उसको 10 लाख तो मिल ही जाते हैं कहीं पे भी। उसको नहीं मिलेंगे तो आप दे देंगे, so that is the deal. So any final advice? We sorry we extended the session half an hour, but we never knew the time is going, because we had a lot of good experience and a frank talk by someone who has built from scratch. तो हमारे कैरियर पाठशाला के स्टूडेंट्स को आपका फाइनल एक एडवाइस, अभी वो पेंडेमिक में हैं, अपने पेरेंट्स के बीच में हैं, और बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, इंटरनेट का डेटा बहुत लिमिटेड मिलता है, ऐसी जगहों पे होंगे जो इंटरनेट बहुत रुक रुक के आता है। और अगर बच्चों की अगर इस समय कोई पोल कराए कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस लाइफ में, तो वो बोलेंगे कि हमारा डेटा बहुत लिमिटेड है, हमारे प्लान्स में वो डेटा बढ़े ताकि हम और सेशंस को अच्छे से अटेंड करें। सो एनीवेज, सो दैट ऑन अ लाइटर नोट, बट this pandemic has brought a lot of things change, and एक सोच, एक कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, अपने आप पे विश्वास कम करना, और ये भी एक प्रकार का एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, एक फेलियर है। सो व्हाट आर योर थॉट्स एज योर फाइनल वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस शो? सो वेयर देयर आर चैलेंजेस देयर आर अपॉर्चुनिटीज, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखिए कि पहले हम PPE किट नहीं बनाते थे, ठीक है, बाहर से एक्सपोर्ट करते थे। अचानक से वो अचानक से हमारे पास इतना प्रोडक्शन यूनिट्स बन गई, इतना हम प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। हम हमेशा से चाइना पे डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई है जो हमारे लिए कर देता है और हम ले लेते हैं, हमें सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कभी खुद प्रोड्यूस करना नहीं शुरू करा, ठीक है। तो जहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारे लिए, अगर आप देखोगे तो हमने वर्क फ्रॉम होम को एक्सप्लोर किया, और हमें कितना हमारी समझदारी अलग लेवल पे पहुंच गई कि किस तरीके से काम करना चाहिए वर्क फ्रॉम होम में, गोल्स कैसे सही बनाने चाहिए, मतलब गोल्स बनाने से ज्यादा इम्प्लीमेंट कैसे कराने चाहिए टीम को। सामने हम बात करके गोल नहीं समझा पाते थे, लेकिन आज रिमोट वर्क से हम उनको समझा पाते हैं। तो क्या होता है, जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जरूर होती है। तो ये पैंडेमिक जो है ना, आप देखिएगा कि पैंडेमिक के बाद, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी थी, 2003 में एक पैंडेमिक आया था चाइना में। उसके बाद वो कंपनी भी लॉकडाउन हो गई थी, और उस लॉकडाउन के बाद उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, ऑनलाइन हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कंपनी में अपने कुछ कुछ चेंजेस किए, और उसके बाद आज वो कंपनी को बहुत बड़ी फेमस हो गई, और आज आप उसको अलीबाबा के नाम से जानते हो,
ठीक है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको मिलती हैं। आपको सिर्फ समझना है कि वो चेंज क्या हो रहा है। आपको सिर्फ अपना माइंडसेट ओपन रखना है। कुछ लोग होंगे जो घर में बैठे रहेंगे, डर जाएंगे, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी क्या है? अब अपॉर्चुनिटी ये नहीं है अब आपके पास, आप घर में बैठे हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, ना एग्जाम का स्ट्रेस है ना कोई, अब तो स्ट्रेस ही खत्म हो गया होगा शायद सारे स्टूडेंट्स का। जब स्ट्रेस नहीं है तो आप वो करो ना जो आपको करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए आपको? अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग सीखो, इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप ये देखो, ठीक है, तो आप उसको समझो, करो। और थर्ड ईयर के टाइम से, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप अपने करियर को चेंज करो, इंटर्नशिप पे आप फोकस करो, आप सीखो। इंटर्नशिप बड़ी कंपनी में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी कंपनी में आपको जॉब भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनी में जॉब करने के कुछ कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है, आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो आप अपने प्रेशर को कम करने के लिए थर्ड ईयर में स्टार्ट कीजिए। फाइनल ईयर में आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैंपस की कम तैयारी कीजिए, और कैंपस, क्योंकि कैंपस तो आउटपुट है, आप उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। आप तैयारी कीजिए, बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं। आप अगर इस टाइप के प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप 100% इंटरव्यूज क्रैक कर लेंगे। और अगर अगर आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया तो आप ये मत सोचिए कि आप मतलब टॉप नीचे से हैं। हाँ, आप बेसिकली आपके लिए वो कंपनी सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो है कट ऑफ जो होता है ना, अपर कट ऑफ होता है कि इससे ज्यादा मार्क्स लाया है तो इसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो ये आप समझिए और सही कंपनी में बैठिए और फोकस करिए, बुक्स पढ़िए, और जिस काम को आप कर रहे हो वो करना चाहिए। बुक्स पढ़िए, मतलब लाइफ लाइफ लेसन्स होते हैं लोगों के। आपकी स्टेज में अगर कोई था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अमेजोन में जाना है तो आप किसी ऐसे स्टूडेंट को ढूंढो जो आपके जैसा था और अमेजोन में गया, उससे बात करो और उसका अमेजोन में क्यों सिलेक्शन हुआ, तब आप अमेजोन में जा पाओगे, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आपको अपॉइंटी में आना है तो आप किसी अपॉइंटी वाले से बात कीजिए कि वो क्यों आए और उनकी लाइफ आपसे डिफरेंट क्यों है, ठीक है। दूसरा, कॉम्पीट मत कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए। आपको सिर्फ एक व्यक्ति से जिंदगी में कॉम्पीट करना है, वो आप खुद हो। अगर आप अपने आप से कॉम्पीट करोगे तो बेहतर होते जाओगे, दूसरे से कॉम्पीट करोगे तो वैसे बनते जाओगे। तो कोलैबोरेट कीजिए, कॉम्पीट मत कीजिए। आईआईटीज में टॉप 200 लोग जाते हैं, जो भी है 200 500 जितने भी जाते हैं, तो उसमें जो लास्ट होता है, जो भी लास्ट होता है उसके बारे में सोचिए कि मतलब अगर 500 लोग हैं उसमें लास्ट आया है, वो दुनिया मतलब इंडिया में टॉप 500 में है और वो वहां पे लास्ट आया है, तो उसके बारे में सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उस इतना ब्रिलियंट बच्चा, उसके ऊपर क्या जाता हो, तो प्रेशर मत डेवलप होने दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप प्रेशर, मतलब ये प्रेशर रिलीज कीजिए। आप प्रेशर रिलीज होता है सही टाइम पे काम करने से, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स को समझा नहीं सकते तो उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको अगर समझाना है तो आपको शायद इसी टाइप के कोई वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, 3 इडियट्स दिखानी पड़ेगी, और उसके बाद वो समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने पे भरोसा रखिए और बड़ा सोचिए, और बड़ा अगर आपने सोच लिया तो आप पक्का कर लोगे। So thank you so much. We are running out of time, but it was really great to have you, sir. And Shikha, your final comments before we say goodbye to Nimesh. So, sir, moving forward with all your words that are think big, there are opportunities, there are challenges, and we just loved today's session. And personally, I loved today's session. And thank you so much for joining in. I hope all the students who are focusing towards entrepreneurship, they would love and they would think big and think like you and become a great person. And thank you so much, sir, for joining in. And thank you, Anuj Garg, sir, for letting me in Sure. today's So session. Thank you viewers, so much, आप sir. अपने एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से नॉट ओनली एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, बट अपने जॉब में भी उस एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को मत जाने दीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट थिंकिंग द वे अराउंड, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, कि लुकिंग एज एन अपॉर्चुनिटी, लुकिंग एट अ बिजनेस, लुकिंग एट bringing a positive change for yourself, for your team, for your company. एंड दैट इज वेयर वो स्पिरिट आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। आप चाहे सोसाइटी के लिए कुछ करें, चाहे अपने लिए करें, एंड वो आपको रिबाउंड करके आगे लेके जाएगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज हमने देखा कि कैसे फेलियर्स हर बार एक नया एक्सपीरियंस ऐड करके एक स्ट्रेंथ बन के आपको और आगे लेके जाता है। तो वो हर घाव आपको वो एक शक्ति देता है कि आप उसमें और आगे बढ़ें।
COVID times is a time when you have time to do something for yourselves. कुछ करें, कुछ करो ना. So this is आप भी अपने लिए कुछ करें and be happy, enjoy this life, this and celebrate your failures. Like ठीक है, मैं फेल हुआ यार, ठीक है. You have someone today who has failed so many times, got bankrupted, and now he's giving salaries of. So it's all about believing yourself. So thank you so much, Nimesh. It was a mix of a lot of technical, a lot of capacity building session for freshers. I intended this, जब मुझे ऐसा सोचा इस सेशन के बारे में, तो मैंने आपका ही सोचा. And thank you for coming to Career Pathshala. We look forward for you to coming back and supporting the student community as you have always been. Thank you, Nimesh. Thank you, Anuj. Thank you, Shika.